So coming to introduce Mrs. Saloni Priya so that the parents, you all know a little bit more about her. Basically, Mrs. Saloni Priya is uh, uh, a founder director of Umeed Counseling and Consulting uh, Psychology Services. And this particular uh, institute or the organization is basically meant for giving the counseling in various different areas of the psychology to the students and the teachers. She is basically a master trainer for all over India, and appointed. She has been appointed as the consultant training at Center of Cultural Research and Training in New Delhi under the Ministry of Culture. And she is pioneer in the field, as I mentioned, in the field of counseling in the country, and respected as a positive psychology proponent of humanistic wave in education sector. She has spearheaded a hundreds of interventions to enable the youth and the children in higher education institutes to secondary education, and has the credit of empowering education leaders from CBSE, ICSE, several state boards. And she has trained a host of our teachers in counseling and guidance, and these teachers have definitely been empowered in handling the boarding school students. And she has got a master in psychology from Lucknow University with MS in counseling and behavior psychotherapy. She is trained in neuro-linguistic program, play therapist and psychometric analyst from VIMANS. This is an institute of mental health and science. She has a fundamental focus on developing positive human relation using positive psychology that operates from strength-based perspective. And she believes in the power of positive psychology and feels it has much larger role to play in educational, social setups. Counseling, mentoring, coaching are the key areas of her work involving management, executives, heads, teachers, and parents. She believes and advocates मम्मी working with आ जाओ all stakeholders. So, ladies अभी and हुआ gentlemen, जस्ट जल्दी आ जाओ I will pass on now without wasting much of time. But once again, before that, ladies and gentlemen, uh, I request all of you to mute the microphone. I still request, because this is a very serious session. This is the kind of session which will be so beneficial. You will get to know as the session actually progresses. And lastly, I welcome Mrs. Saloni Priya on behalf of all the teaching faculty who are present here, and also on behalf of all the parents of Birla Public School. Over to Mrs. Saloni Priya. Thank you. Good evening and namaskar. Thank you so much, Captain Olakesh Sen, for all your kind words. It is absolutely true that Birla Public School is like a home to me. It is a premium legacy institution of our country, and I have had some very cherished moments spent here with your teachers and children. So today, when I'm meeting the parents, I'm completing the circle, even if Captain Sane, it is on the virtual mode to welcome the new digital technology in our lives like never before. So thank you, sir, for having me and helping all your parents along with your teachers to move on in such distressing time. It is unprecedented, and as we all know, the second wave has really been hitting all of us hard because it was more than a year and schools were just back on track. Children were there in school, and so much of hard work was done. And from there, again, we had to take a step back. And that is why, parents,
आप सभी के लिए एक मुश्किल दौर है और इस समय इन हालात में जहां पे सब चीजें Captain sir, I hope I am clearly audible to everyone. Yes, You are madam. very You are. clearly. No, Yes, ma'am. Thank you so much. Yeah. Thank you. Please go on, carry on. So today I was talking to your principal sir, eminent educationist in our country, and a person who looks at education and children and youth and future not only from his school point of view but from a very larger perspective. और इसीलिए आज हम यहाँ पे स्कूल मीटिंग में स्कूल के कंप्लीट इन्वायरमेंट से हमारे बच्चों के लाइफ में क्या असर है, और पिछले साल भर ऑलमोस्ट 15 महीने, अब मोर देन दैट, हम लोग सब ने जिस चीजों को देखा है, महसूस किया है, उसने हमें साइको सोशली अफेक्ट किया है। फिजिकल हेल्थ तो अफेक्ट होती है, हम सब ने देखा है, लेकिन एक चीज जो नजर नहीं आती है लेकिन इंसान को बहुत भीतर तक इम्पैक्ट रखती है, अफेक्ट करती है और लॉन्ग टर्म तक करती है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड साइको सोशल। जैसा कि सर ने मेरा परिचय दिया, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूं और मैंने मेजर पिछले 24 साल से यूथ एंड एडोलेसेंट के साथ काम किया है। एंड आई बिलीव कि इस पैंडेमिक में हम सबको प्रो एक्टिविटी की जरूरत है। ये प्रो एक्टिविटी का मतलब है वी आर गोइंग टू लुक एट थिंग्स फ्रॉम अ वेरी वेरी प्रोडक्टिव वे एंड वी विल रिमेन वेरी एक्टिव। और इसीलिए ये जो चित्र मैंने आपके लिए स्क्रीन पे डाला है, होल बॉडी मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ मई को डिक्लेयर किया है WHO ने। आज जून का अंत है और हम इस मेंटल हेल्थ की बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इस पैंडेमिक ने हम सबको दिखाया कि ह्यूमन स्पिरिट हैज अ लॉट ऑफ रेजिलियंस। हमारे अंदर जो आंतरिक शक्ति है, हमारी जो विवेचना करने का जो दिमाग में, मस्तिष्क में हमारे विचार, हमारी सोच, हमारी एनालिसिस, उन सब से भी ज्यादा हमारा जो विश्वास है। आज देखिए पैंडेमिक के समय साइकोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट बहुत रिसर्च कर रहे हैं और इन रिसर्च में बार बार हम हिस्ट्री से सीखते हैं कि किस तरह से जब पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर हुआ, होलोकॉस्ट हुआ, एटॉमिक बम गिरा। आज अगर आप जापान को देखें तो 60-70 साल बाद जापान आज वो देश है जो हर तरह से बहुत उन्नति कर चुका है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है और 100 साल से उम्र के ज्यादा के सबसे ज्यादा लोग दुनिया में अगर कहीं हैं तो वो जापान में है। तो एक न्यूक्लियर बॉम्ब के बाद, एक वर्ल्ड वॉर के बाद भी दुनिया में लोगों ने वापस विजय हासिल की। आज इस पैंडेमिक में भी हमें यही देखना है कि वो कौन सी शक्तियां थी जिसने इंसान को इस मुश्किल समय में प्रेरित किया, प्रेरणा दी, सहारा दिया और आगे रास्ते को बनाते रहने का। क्योंकि इस समय हमारे पास कोई बने हुए रास्ते नहीं है जिन पे हम चलने लगे। हमारे दिमाग में कोई पहले का प्लान नहीं है कि मुझे पता है कि ऐसे में ऐसा करना चाहिए। और इसीलिए ये परिस्थितियां बहुत कुछ हमें सिखा भी रही हैं, हमारे को बहुत अंदर तक सोचने पे मजबूर भी कर रही हैं और कभी-कभी हमें बहुत विचलित भी करती हैं। Sometimes we are very stressed out. I think I can say that for myself and with all of you, with elderly parents, with children studying abroad, with so many of our family members, we all have gone through distress. And I do hope that when, as sir was saying about the new normal, ये न्यू लाइफस्टाइल के हम कुछ तो आदी हो रहे हैं। मास्क और सैनिटाइजर और हाथ धोना और डिटॉल का इस्तेमाल करना, बहुत सारी चीजों को हमने एक चॉइस की तरह अपना लिया है। आई डू होप दैट आप सब ने हेल्दी लाइफस्टाइल को भी चॉइस किया है। देयर आर स्मॉल सिंपल थिंग्स जिनको करने से we will all be able to deal with our mental health. And mental health क्या है? What we feel. हम जो सोचते हैं ठीक उसी तरह से हम जो महसूस करते हैं। और इसीलिए देखिए जितने भी आपके इमोशंस हैं, क्यों आपको किसी दिन अच्छा लगता है और किसी दिन अंदर से अच्छा नहीं लगता है, ये आपके मेंटल हेल्थ का इंडिकेटर है।
सबसे अच्छा इंडिकेटर है कि अगर आप थोड़ी देर के लिए सिर्फ अपने आप से बात करें, तो जिन शब्दों का चयन आप अपने से बात करने के लिए करते हैं, those words are going to help you to see what is your mental health. Am I feeling upset? Am I feeling happy? Am I calm? Am I realistic? कि ठीक है, मुश्किल तो है, बट घर में तो नहीं बैठे रह सकते हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। बाहर नहीं जा सकता हूं, तो मैं घर में ही क्या कर सकता हूं जिससे कि मुझे अपनी लाइफ में कोई ना कोई पॉजिटिविटी मिले। And that is why, if I look at this picture where children are sitting around the table and talking, I know this kind of things have become so difficult now. Look at it. Today we all are small windows on the screen, but still thanks to technology, at least we are able to connect and talk to each other. And that is why, parents, when we are talking about a holistic well-being, ये जो बिरला schools हैं, they have been pioneers in creating this holistic well-being. और इस holistic well-being का मतलब होता था बच्चों के साथ IQ, EQ, SQ और HQ चारों क्वेश्चंस का समावेश कर। अब देखिए इस पैंडेमिक में हमारे साथ क्या हुआ है। ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल बीइंग्स, और इसीलिए जब स्कूल्स बनाए गए थे हजारों साल पहले, तो स्कूल्स की स्थापना इस उद्देश्य से की गई थी कि बच्चे एक उम्र में 6 साल से लेके 17, 18, 20 साल तक एक इंस्टीट्यूशन में रहेंगे अपने माँ बाप से अलग, और यहाँ पे इनको इनके गुरु, इनके गाइड्स, डिफरेंट एक्सपर्ट्स ऑफ सब्जेक्ट स्किल्स, they are going to put them into a routine, into a discipline, and that is how children will grow up to be human beings of worth and worthy citizens, ready to take responsibilities and people who will know their own worth. That is why जो हमारा social support system है ना, हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, हमारा वर्किंग एनवायरनमेंट, हमारे सोशल सिस्टम्स, ये सब हमको हेल्प करते हैं टू फील आई एग्जिस्ट। हमें लगता है कि हाँ हमारा कोई वजूद है, हमारा व्यक्तित्व है, एंड वी फील वैल्यूड। बट जब हमारे साथ ये कोरोना का पैंडेमिक आया, तो मुझे बताइए, हैज एजुकेशन स्टॉप्ड? I can see many teachers nodding, no ma'am, the education did not stop. Yes, you are right. Only school buildings were locked. I hope you agree with me, Mr. Sen, Captain Sen. हमने सिर्फ school buildings lock किए for physical safety, but Yeah. learning did not stop. Yeah, did not stop. Correct. Learning, teaching did not stop, and that is why IQ, which is intelligence, EQ, which is emotional quotient, महसूस करना, इसने, और सोशल क्वोशंट, लोगों के साथ मिलना, उनके साथ अपने इंटरैक्शन से अपने को डेवलप करना, ये जरूर कम हुआ। क्योंकि कहीं ना कहीं हमने क्या कह दिया, फिजिकल डिस्टेंसिंग तो बहुत जरूरी थी ना इस कोरोना वायरस को हराने के लिए, लेकिन हमने क्या कह दिया, मोर देन फिजिकल डिस्टेंसिंग वी सेड social distance. Social distancing, ma'am. And that is where the problem is. Thank you for sharing that. We don't need social distancing, friends. We need physical distance. We need social connect. And I'm very grateful to Birla Education Trust for creating this series of sessions for parents that let us come together. Zoom rooms और Google Classroom से connect बना रहा, learning हुई, teaching हुई, और सबसे ज़्यादा शायद teachers ने learn किया. This beautiful temple of education. I must say, parents, all of us, let us join hands today to give a very big clap and salute to schools. जहां पे गवर्नमेंट दफ्तर तक बंद थे, लेकिन स्कूलों ने सबसे पहले अप्रैल 2020 most schools they started figuring out, technology upgradation हुआ. Birla Public School already is a school which has very high technological upgradation, but still it was a lot of change. बच्चों को सामने रख के डिजिटल टूल्स यूज करना और अपने घर के एक कमरे से कनेक्ट करना, बच्चों को कनेक्ट करना मुश्किल था। तो बहुत सी ई लर्निंग हुई, डिजिटल अपग्रेडेशन हुआ, टेक्निकल स्किल्स बढ़े। मैंने भी बहुत कुछ सीखा
और हमारे बच्चों ने भी हमें सिखाया। बहुत से पेरेंट्स भी मेरे से यहाँ एग्री करेंगे कि मैम हमको तो बच्चों ने ही सिखाया। और तब से शुरू हुआ ब्लेंडेड लर्निंग, लर्निंग जहाँ पे बच्चे और पेरेंट्स साथ में सीख रहे थे, और टीचर्स एज अ कम्युनिटी वर ट्राइंग टू ट्रांसमिट नॉलेज यूजिंग दीज न्यू मैकेनिज्म्स. Our buildings were looking sad, and I am honest to say, friends, that it is very sad for teachers. I have seen how teachers have felt that, ma'am, मैं दिन में 7 घंटे पढ़ाता था. Birla Public School, I think there are teachers who are on their feet 9 hours a day and they are never tired. And here, in a digital learning, we started getting tired. We started feeling fatigue. Why? Because social connect नहीं था. आपको अपने क्लासरूम में बच्चे नहीं दिख रहे थे. वो बच्चे जो हाथ उठाते थे, क्वेश्चंस पूछते थे, हंसते थे, ताली बजाते थे या बदमाशियां करते थे, वो सारे ये जो सोशल क्यूज है ना, यही दे मेक लाइफ वर्थ लिविंग. बट हम सब ने यही महसूस किया, अकेलापन, आइसोलेशन, और यहीं से अडेप्टेशन शुरू हुआ. ह्यूमन बीइंग्स हैड टू अडेप्ट टू दिस न्यू वर्ल्ड, और इस न्यू वर्ल्ड में हमें अलर्ट रहना है, आज भी रहना है, और हम अलर्ट थे तभी हम आज आपसे बात कर रहे हैं. वी हैव टू बी अवेयर. हमें लगातार इंफॉर्मेशन, जो भी चीजें गवर्नमेंट एडवाइजरीज हैं, हमारे हेल्थ एडवाइजरीज हैं, हमारी अपनी सोच है, हमें उसके लिए अवेयर होना है, अपने को सचेत रखना है. और इन सब ए के साथ आता है एक्ट करना. लेकिन हमें कुछ ना कुछ रोज चूज करना है और एक्ट करना है. And that is why when I am saying that we need to give a big clap and big salute to all educators for their tremendous effort. In spite of all their effort, look at it. I am sure you can see your children here. I can see my boys. I am a mother of 2 boys, and yes, my children have also been in a boarding school, friends. And I know why we choose boarding schools. ये जो प्रीमियम बोर्डिंग स्कूल्स हैं, ये हमारे लिए एक सपना है. आपके सपने साकार हैं कि आपके बच्चे इन स्कूलों में गए, क्योंकि हम सब ने कहीं सोचा होगा ना कि मैम हम तो ऐसे स्कूल में नहीं जा पाए, पर हम अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं फॉर हिज होलिस्टिक डेवलपमेंट. और बिरला में तो आई नो इट इज अ लेगेसी. 3-4 जनरेशन से लोग यही हैं. So maybe some of you are parents who feel, ma'am, I am also a pass out of Birla Public School, and I could think of no other school for my son. My son again goes back to the same school. And that is why parents, इस मुश्किल दौर में जब स्कूल की ये फिजिकल एक्टिविटीज कुछ हद तक नहीं हो पाई, आई नो देर आर स्टिल सजेशंस, योगा हो रहा है, बहुत से टीचर्स वीडियोस बना के बच्चों को फिटनेस के लिए भी मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन हाँ, हम ये कुछ सीमित लेवल तक ही कर पा रहे हैं. और इसीलिए इस समय हमें ये भी जरूरी है कि हम अंडरस्टैंड करें कि दिस कोरोना वायरस डिजीज हैज अपटेंडेड फैमिली अराउंड द वर्ल्ड. क्या हुआ है, क्लासरूम्स आपके घरों में पहुंच गए हैं, और कहीं ना कहीं हम सब पहले से ज्यादा जुड़ सकते हैं अपनी सोच से. ये जो स्कूल बंद हुए, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर शुरू हुआ, फिजिकल डिस्टेंसिंग तो रखनी ही थी, लेकिन इतना फियर का माहौल हुआ, एंजाइटी हुई, हमने बहुत सी डेथ्स देखी, हमने हेल्पलेसनेस देखी, हमने वरी देखा. और इन सब चीजों में इनके बावजूद भी पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, क्योंकि आज जो भी डिजिटल लर्निंग हो रही है, ये पेरेंट्स के ही वजह से हो रही है. एंड दैट इज व्हाई पेरेंट्स, you have done tremendously well. And 24/7 having children at home who have come back from boarding school, it has been a huge challenge. And that is why this partnership with teachers became the new order. Parents can contribute to the learning and well-being of their children now like never before. और ये जो नया एजुकेशन सिस्टम न्यू नॉर्मल की बात कर रहा है, इसमें पेरेंट्स के और ज्यादा मल्टी फेसेटेड रोल है. तभी हम अपने बच्चों की लाइफ में ये जो एक वैक्यूम के ईयर हैं, इनको वैक्यूम या खोखला नहीं होने देंगे. और यहाँ पे इसीलिए जरूरत है. I was so happy to hear that Alokesh Sen sir had a series of talk with parents. He has always been there to help you as a guardian, not only to your children, but to the whole community of Birla Public Schools. And that is why, parents,
I know you are also doing all you can in enormously difficult circumstances. Let us see, can I, as a psychologist and an educationist working with children, help you to see how it is very important for us to do two things at this moment. First of all, understand how to take care of our own self. Teachers and parents, आप बहुत प्रेशियस हैं और मेरे लिए ये दोनों दो कम्युनिटी नहीं है. आज जो इस स्कूल का पेरेंट है वो शायद किसी दूसरे स्कूल में टीचर है, और जो इस स्कूल में टीचर है उसका बच्चा भी शायद इसी स्कूल में है या किसी और स्कूल में पढ़ रहा है. तो हम बेसिकली कोई दो अलग ग्रुप्स नहीं है. हम अडल्ट्स हैं, वी आर केयर गिवर्स एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस. देखिए, इस पूरे पैंडेमिक ने क्या किया है, अनसर्टेनिटी इन लाइफ क्रिएट कर दी. जो भी हमारे पहले की सोच और साधन थे कि आई हैव मनी, आई एम लिविंग इन अ बिग सिटी सो आई हैव एक्सेस टू बेटर मेडिकल फैसिलिटीज, आई नो सच एंड सच पर्सन, आई हैव दिस पावर. व्हाट हैपेंड? More so in the second pandemic wave, there were absolute uncertainty. And that is where जब ग्लोबल पैंडेमिक सिचुएशन हुई, हमने जिन देशों को हम बहुत अपने से सक्षम मानते थे, जब हमने उनके यहाँ एक बहुत ही विभत्स परिस्थिति देखी, हेल्पलेसनेस की, हमारे फाइनेंसेस की, हेल्थ की, रिलेशनशिप्स की, हर में लाइफ में अनसर्टेनिटी आ गई. ह्यूमन बीइंग्स के लिए देखिए, जिस तरह से हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता है, सांस लेने के लिए हवा की आवश्यकता है, ठीक उसी तरह से इंसान को इमोशनल हेल्थ के लिए सिक्योरिटी जरूरत है. इसीलिए देखिए, जॉब सिक्योरिटी हमारे अडल्ट लाइफ में कितनी जरूरी है. इफ आई एम नॉट हैप्पी इन माय जॉब, एवरीथिंग इन माय लाइफ स्टार्ट्स फॉलिंग अपार्ट. सो वी वांट टू फील सेफ एंड हैव अ सेंस ऑफ कंट्रोल ओवर लाइव्स. आपके घर में जो चीज जहां रखी है, आपके माइंड में एक मैप है ना, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग है. हाँ, मेरा घर है, मुझे पता है मेरी ये फाइल, मेरा ये लैपटॉप कहाँ है. और अगर किसी दिन वो वहां नहीं मिलता है तो हमें कैसा महसूस होता है? वी स्टार्ट फीलिंग एंग्शियस, अपसेट, इरिटेटेड. किसने उठा दिया, क्यों हटाया यहाँ से, मेरा सामान मत छुओ. ये तो एक बड़ी छोटी सी चीज है, जरा से चेंज की. इस समय तो पूरे विश्व में अनसर्टेनिटी का माहौल था और इसने कहीं ना कहीं हम सबको पावरलेस महसूस कराया. अब पता नहीं क्या होगा, ईश्वर ही जाने क्या हो सकता है. और इसीलिए जैसा मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया, पेरेंट्स, इट इज ओके टू नॉट बी ओके. ये जो परिस्थिति है, इसमें लो फील करना, डिप्रेस फील करना, कॉन्सेंट्रेशन नहीं होना, आमतौर की भाषा पे हम कहते हैं नॉट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, मेरा मन नहीं कर रहा. फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस, पता नहीं कुछ करने का फायदा भी है कि नहीं. फीलिंग ऑफ सैडनेस, फीलिंग मुझे इच्छा नहीं है कुछ करने की. और डिप्रेशन. In the last 1 year, I must have done more than 200 webinars, right from Tata Steel employees to State Bank of India corporate managers. I've been talking to people across because I've always believed कि psychologist की सबसे बड़ी जरूरत समाज को प्रॉब्लम्स कम करने की नहीं है, इंसान को अपने स्ट्रेंथ समझने के लिए. और यही पॉजिटिव साइकोलॉजी. पॉजिटिव साइकोलॉजी यही कहती है कि हम कितनी भी विषम परिस्थिति में हो, हर इंसान के अंदर एक यूनिक एबिलिटी है अपने सिचुएशन को बेटर करने की. और ये बेटर करने की शुरुआत होती है हमारे दिमाग से, हमारी सोच से. पैंडेमिक सर्कमस्टेंसेस में अगर हमारे को नेगेटिव इमोशंस हुए हैं, फियर हुआ है, हम में से बहुत से लोग सोच रहे हैं कि नहीं, हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम इसको सप्रेस करेंगे, इसको बॉटल अप करेंगे, हमें बस कुछ करते रहना है. We cannot force ourselves to be positive. We will have to think and choose to be positive. क्योंकि फोर्स करना या सप्रेस करना ज्वालामुखी की तरह है. वो किसी भी समय और ज्यादातर गलत समय पे ज्वालामुखी फूट पड़ता है. Denying or suppressing your emotions will only increase stress, depression, burnout, and we will start having lot of nervousness. इसीलिए यहाँ पे सोचिए, आप में से जितने लोग सक्षम हैं, हम आज भी अपनी जिम्मेदारियों की वजह से आगे बढ़ते जा रहे हैं. किस चीज ने पैंडेमिक में हमें सबसे ज्यादा हेल्प की?
हमारी जिम्मेदारी ने। अब क्या करें, जो भी है टीवी में कुछ भी दिखा रहा, मेरे घर में तो मुझे उठ के ये करना है, मुझे अपने स्कूल में ये काम करना है, मेरी आज मीटिंग है, मुझे नए क्लास बनाने हैं, मुझे अपना सब्जेक्ट तो आता है लेकिन आज मुझे फिर से एक पीपीटी बनाना है। जब हम बिजी थे, हम इंगेज थे, हमारा माइंड जो है किसी प्रोडक्टिव कार्य में था, वी वर एबल टू हैंडल दिस। और आज मैं ये बात 2021 जून में इसलिए कह रही हूं क्योंकि हम फिर एक अनसर्टेनिटी के दौर में हैं। और अगर हमने अपने मन को ये बोला था चलो सब ठीक हो गया है, नाउ एवरीथिंग इज बैक टू नॉर्मल, I want to request everybody and every educator to keep believing we will never go back to normal. We will now go forward to a new normal by adapting it. And that is why parents, इस समय अपने आप को समझने के लिए मेरे इस चित्र पे ध्यान दें जो आपके स्क्रीन पे नजर आता है। इंसान का जो शरीर है ना, वो दो है। एक तो ये फिजिकल शरीर है जो हमें दिखता है, शीशे में हम देखते हैं, बाल संवारते हैं, इस शरीर को सजाते संवारते हैं, ये हमें दिखता है। और इस शरीर के इलाज के लिए मेडिकल साइंस ने बड़ी तरक्की भी की है। आपकी बॉडी के हर पार्ट का आप एक्सरे या सीटी स्कैन निकाल सकते हैं, लेकिन इन किसी भी स्कैन में आपको ये दूसरा शरीर नहीं दिखता है। ये इनविजिबल है लेकिन बहुत पावरफुल है। और ये इनविजिबल शरीर पैरेलली रहता है जो आपको जिंदगी के हर चीज को महसूस कराता है। दैट इस पैंडेमिक में ये शरीर कैसा हो गया है, लोनली, एंग्री, अफ्रेड, एंग्शियस, वरीड, कंफ्यूज्ड, हेल्पलेस। और इस शरीर को कंट्रोल कौन कर सकता है? हमारा दिमाग, हमारे माइंड, ये जो हेड का ऊपर का भाग है वहीं पे हमारा ब्रेन है, हम सब जानते हैं। लेकिन रियलिटी में ना वो पूरे शरीर को इस तरह से घेर के रखता है। और जब आपका माइंड आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है, उसको गाइड करता है, तो आपकी बॉडी वापस से शांत हो जाती है, प्रोडक्टिव हो जाती है और स्ट्रांगली चीजों को फेस करती है। अपने माइंड को ट्रेन करना ही मेंटल हेल्थ है। और माइंड को ट्रेन करने के लिए हमारा जो एंशिएंट आयुर्वेदिक या नेचुरोपैथी है, हमारा जो सनातन धर्म है, हमारे जो आज के लेटेस्ट साइंटिफिक इन्वेंशंस हैं, सब एक ही बात कहते हैं। एंड व्हाट इज दैट? देखिए, माइंड को शांत करने के लिए सबसे जरूरी है ब्रीदिंग। इसीलिए देखिए हमारे यौगिक में क्या कहा गया है, प्राणायाम। प्राण इज योर लाइफ एंड लाइफ इज योर ब्रीदिंग। जब तक हमारी सांस है तब तक हम में प्राण है। That is why a lot of breathing exercises were always taught for enhancing concentration and for deep meditation. आज आपने पिछले साल भर में सुना होगा, every person is teaching us do breathing exercises, do exercises for your lungs, do pranayam, do yogic exercises. Art of living हो या आपने बाबा रामदेव हो, everybody is talking about meditation, mindfulness, right teachers? So many of you must be using it also. But today in pandemic we need to understand that actually ये different जो यौगिक क्रियाएं हैं, processes हैं, वो ब्रह्म कुमारीज हो या वो हमारे अपने बाबा रामदेव हो, everybody is actually training you कि माइंड पे ज्यादा फोकस लाइए, आपकी लाइफ के सर्कमस्टेंसेस को आपकी बॉडी बेटर डील कर पाएगी। And this is the interrelation of mental, physical and social well-being, our complete self, element of wellness. कितनी बार ऐसा होता है ना कि जब हम परेशान हो, अगर हम वॉक करने जाएं और अच्छा मौसम है, पत्तियां हैं, फूल हैं, हम थोड़ी देर घूम के आते हैं, we start feeling there is some new energy. That is why कहा गया है nature is one of the best healer. Today in pandemic we are seeing that how our abuse of environment has made us reach a situation which seems to be very alarming. And that is why parents, teachers, all of you, Pilani of course public school has a beautiful campus which is lush green, and yes, sitting here I can put myself mentally in that campus and see that beautiful serene environment. But today in pandemic we are not able to go there. आप सबको देखना पड़ेगा
एक तुलसी का पेड़, एक छोटी सी बालकनी, how am I going to create a little space where every day I sit with myself at least for 5 minutes to pause and bring in positive feelings of gratitude. Gratitude. आप देखिए दुनिया का हर रिलीजन आपको थैंक्स देना सिखाता है और इसीलिए gratitude actually allows your mind to be more productive. Listening. कोशिश करिए घर में बच्चों के साथ, आपके जो ये टीनेजर्स बच्चे हैं इनके ऊपर पैंडेमिक का यही असर है क्योंकि इस समय ब्रेन एक्टिविटी बहुत हाई होती है बच्चों में, इसीलिए बहुत सारी चीजों को करने की इच्छा होती है, रेस्टलेसनेस होती है, फिजिकल मूवमेंट, और जो स्कूल ये सारी ट्रेनिंग्स करता है वो इनके माइंड और बॉडी को हार्मनी में लाता है. टुडे व्हेन स्कूल्स आर अनेबल टू डू दैट, you will have to do that, parents. And that is why let us deal with these situations, not deny. और देखिए माइंड का जो पूरा स्ट्रक्चर है, आज तो हम ऑलरेडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें कर रहे हैं. व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? इंसान के मस्तिष्क में सोचने, समझने और महसूस करने की एबिलिटी को हम माइक्रो प्रोसेसर्स बना के मशीन में डाल रहे हैं, रोबोट्स में डाल रहे हैं. इवन अब आपके पास सिरी जैसा सॉफ्टवेयर है या अलेक्सा है जिसको अगर आप इंस्ट्रक्शन दीजिए तो वो इंसान के शब्दों को समझ के उस इंस्ट्रक्शन को एक ह्यूमन माइंड की तरह प्रोसेस करके वो काम कर देता है. हमें इस दुनिया में अपने बच्चों को मशीनों से बेटर बनाना है और ये हम कैसे बनाएंगे? बाय कॉन्फ्रंटिंग माय फियर. सबसे पहले तो अगर किसी भी तरह का डर है, वरी है, एंजाइटी है तो उसके बारे में बात करिए, उसको दबाइए नहीं. Look for anybody, a friend, a colleague, somebody whom you trust, a advisor, a professional counselor, anybody. Make proactive choices. अपनी दिनचर्या में हम सबको proactive choice करना है और ये proactive choices हमें बच्चों के साथ करने हैं. मान लीजिए कि 24/7 आज जो ये मेरा बच्चा मेरे पास घर में है, ये लाइफ में बहुत कम समय ही हो सकता है. तो क्या इस समय मैंने अपने बच्चे के साथ बैठ के कि ठीक है बेटा अब तुम क्लास 8th में हो, 10th में हो, 12th में हो, यू आर अ ग्रोन अप बॉय एंड आई नीड टू टॉक टू यू, कि मैं तुम्हें बताता हूँ मेरी लाइफ की प्रोफेशन की शुरुआत कैसे हुई. What was my first salary? How do I maintain a budget? How do we plan our savings? How have we made investment for your higher education and our old age? फाइनेंशियल प्लानिंग करिए बच्चों के साथ, उन्हें दिखाइए. आप देखेंगे कि क्लास 6 या 7 का बच्चा भी, उसके अंदर एक सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस आती है कि हाँ मुझे इन चीजों के बारे में पता चला. क्रिएटिंग न्यू पैटर्न्स इन माय माइंड, ये बहुत जरूरी है. हम पुराने पैटर्न्स को अगर नए पर्सपेक्टिव में लाएंगे तो हम बार बार फ्रस्ट्रेट होंगे, लेकिन अगर हम नए पैटर्न्स बना लें, और नए पैटर्न्स बनाना वैसे ही है जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि सब जगह नीले नीले बॉक्स हैं. ये जो बॉक्सेस बने हैं ना, ये स्क्वायर्स, हमारे दिमाग में भी माइक्रो प्रोसेसर्स की ही तरह. बात तो उल्टी है कि एक्चुअली माइक्रो प्रोसेसर्स हमारे माइंड के रेप्लिका हैं. हमारे माइंड में हमारी जितनी भी मेमोरी है, हमारे जितने थॉट्स हैं, हमें जिन चीजों की प्रिंसिपल्स बनाया है, हमारे जो वैल्यू सिस्टम्स हैं, ये सारे ऐसी छोटे छोटे बॉक्सेस में दिमाग में रहते हैं और ये तुरंत एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं और हमारे शरीर को इंस्ट्रक्शन देते हैं हाउ टू डील विद एनी सिचुएशन. इसीलिए आज कोरोना के समय 1 साल बाद ये बहुत जरूरी है हमारे लिए देखना कि हमने नए पैटर्न्स कितने बनाए हैं. आप जितने नए पैटर्न्स बना लोगे, जैसे कि ये नीला बॉक्स हटा के हम रेड बॉक्स डाल रहे हैं, और ये जो बॉक्सेस हैं ये क्या है? कंप्लीट प्रोग्रामिंग है. हाउ एम आई गोइंग टू डील इन दिस सिचुएशन? I love working with children and nurturing children is what Umeed is. My organization Umeed is all about supporting people and nurturing people. इस पैंडेमिक के समय में जब मेरा फिजिकल कांटेक्ट कम हुआ, इट वाज इनिशियली वेरी अपसेटिंग और फिर मुझे नए पैटर्न्स बनाने पड़े. आई हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम गार्डनिंग. I have spent a lot of time doing online counseling. I have spent a lot of time connecting to communities in Middle East. हमारी बहुत सी इंडियन फैमिलीज और अब्रॉड पढ़ते हुए बच्चे पिछले साल अप्रैल से सितंबर के बीच में they felt stuck, they felt helpless. I am happy
कि मैंने अपनी इस नई प्रोग्रामिंग को यूज किया। मुझे भी शुरू में संकोच लगा, मुझे लगा मैंने हमेशा लोगों से सामने बात की है, अब बिना किसी को जाने इतने दूर से एक विंडो के थ्रू मैं कैसे बात करूंगी। But I am glad that today, after 1 year, I can tell you that I have received so much of satisfaction because I could be a part of people's life. One of the most interesting cases which I handled was the 70-year-old woman who from Calcutta had gone in the month of February to Canada. And March में जैसे ही जनता कर्फ्यू के बाद total lockdown हुआ, she could not come back and she had a nervous breakdown. She was hospitalized. डॉक्टर्स ने सब इलाज किया और उसके बाद उन्होंने बोला कि 70 years की उम्र के अनुसार physically she is absolutely fine, बस she has some thoughts which are disturbing her. She needs a psychologist. कनाडा में हॉस्पिटल्स में जियाट्रिक में हमेशा साइकोलॉजिस्ट थे, बट दिस वुमन रिफ्यूज टू टॉक। वो एक कपड़े से अपना मुंह ढक लेती थी कि मुझे बात नहीं करनी। वो या तो रोती थी या वो हर समय बेचैन रहती थी। उन्होंने खाना छोड़ दिया था एंड शी वॉज इन टेरिबल स्टेट। और ये देखिए किस तरह से दिमाग आपके पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। उसके बाद finally through net, this technology, they were able to find me. I am happy that this auntie was able to connect to me. इन्होंने मुझसे बात करनी शुरू की। शुरू में तो ये बहुत रोती थी और धीरे धीरे सेशंस के मुझे क्या पता चला, इनका सबसे बड़ा थॉट क्या था, मैंने बहुत बड़ी गलती करी। पिछले 40 साल से मैं अपने पति के साथ जिस घर में रहती थी, मुझे उसको छोड़कर नहीं आना था। वहीं पे मेरा बसेरा है, मुझे वहीं मरना है और मुझे लाइफ के लास्ट समय यहाँ नहीं आना चाहिए था। आई हैव मेड अ मिस्टेक। अब आप और मैं दोनों जानते हैं कि ये एक परिस्थिति थी, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है और अभी भी कोई नहीं जानता है कि कितने दिन ये परिस्थिति है। आई हैड टू हेल्प हर टू गेट कनेक्टेड टू न्यू पैटर्न्स। और आज एक लंबी सी बात अगर मैं आपको बताऊं कि 3 महीने बाद आई एम सो हैप्पी टू शेयर विथ यू दैट बंद कर देगा। I am happy to share with you that now she is so engaged. She is absolutely fit, healthier than ever before, and she is making a lot of difference to many people. सवेरे ये बच्चों को बंगाली पढ़ाती हैं and more than 50 families have connected now whose children all over Canada they are studying Bengali from auntie. She is teaching Ravindra Sangeet to some teenagers and helping a lot of mothers to sing Ravindra Sangeet and connect to their traditions and culture. And she is also having Saturday, Sunday cooking classes where she is posting her videos and teaching people some of the traditional Bengali cuisine. And that is what mind is. जब उनके माइंड ने एक्सेप्ट किया, अपने को प्रोडक्टिव किया, नए पैटर्न्स बना के चीजों से एडजस्टमेंट किया कि ये कोई सिचुएशन नहीं है। शुरू का नेगेटिव थॉट क्या था, मैं यहीं मर जाऊंगी कनाडा में और यहीं मुझे कहीं नाली में फेंक देंगे, मेरा क्रियाकर्म भी नहीं होगा। और इस थॉट ने उनको इतना परेशान कर रखा। हम सबको ये समझने की जरूरत है कि हमारा माइंड हजारों थॉट्स डेली क्रिएट करता है, पर जरूरी नहीं है कि ये जो थॉट्स हैं ये फैक्ट्स हो। इसीलिए मैं आपसे कहूंगी कि लर्नड ऑप्टिमिज्म इज आई हैव मेड अ चॉइस दैट आई एम गोइंग टू लुक एट पॉजिटिव थिंग्स। और ये हम तभी कर पाएंगे जब मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, प्लीज लिमिट मीडिया। ये जो अननेसेसरली मीडिया कॉन्स्टेंटली हमको ऐसे न्यूज दे रहा है जो शायद इंफॉर्मेशन और नॉलेज से ज्यादा प्रोपोगेंडा है। मैं किसी के भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती हूँ, बस अपनी बात कहना चाहती हूँ कि हमारे घरों में स्पेशली विद चिल्ड्रन, टीनेजर्स, ओल्ड एज पीपल, प्लीज लिमिट मीडिया, प्लीज बी वेरी केयरफुल व्हाट इज गेटिंग इनसाइड माय माइंड, because that is only going to create the entire scenario. And that is why मीडिया, आपको न्यूज देखना है सवेरे और शाम 2 बार देखना बहुत है। 2 बार न्यूज देखने से दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमसे छूट जाएगा या हम पीछे रह जाएंगे।
लेकिन बाकी समय सी टू इट दैट आपके घरों में, आपके बच्चों के आसपास, आर वी एबल टू हैव थिंग्स which are going to create more positive energy. And what is that positive energy? Any kind of chanting, any religion, if you see, the religions of the world, they always use sound energy. चाहे वो हमारे मंदिर के घंटे हो, हमारी आरती के समय बजाते हुए वाद्य हो, या एक चर्च का बेल हो, या एक मस्जिद की अजान हो, या शब्द का कीर्तन हो. आप देखिए, every religion of the world has taught us that we have to use sound when we are praying. And why is so? Because sound is the energy waves which reaches the mind very fast. And that is why all of us will have to see to it that हमारे घरों में जो साउंड एनर्जी है इस समय, वो हमें स्ट्रेस क्रिएट कर रही है. क्योंकि देखिए, साउंड ही है. अगर आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सुनते हैं तो वो म्यूजिक है, और अगर आप बहुत सारे वाहनों के हॉर्न सुनते हैं तो वो नॉइज है दोनों ही साउंड एनर्जी. हम अपने घरों में किस साउंड एनर्जी का प्रयोग कर रहे हैं? We need to decide that. And I do hope that all of you are going to see to it, whether it is chanting, whether it is music of nature, whether it is traditional Hindustani classical music, whether it is any kind of chanting which you like, Buddhist or Gayatri mantra, plus please see to it. ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे लाइफ में बहुत बड़ा असर लाती हैं. आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर अवेयर, आज व्हाट्सएप पे बहुत सारा हमारे पास ज्ञान आता रहता है. व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी अपने आप में एक अलग डिजिटल कनेक्ट है कि गायत्री मंत्र के उच्चारण के ऊपर आज कितने रिसर्च हैं, एंड सो मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव स्टार्टेड यूजिंग इट. एंड आई रिमेंबर एट बिरला स्कूल्स ऑलवेज दिस हैज बीन अ ट्रेडिशन. एम आई राइट, Alokesh sir? We have always exposed our children to these ancient practices which have much deeper meaning to human well-being. And that is why, parents, it is all about how we train our mind in these digital online classes. The new normal, people with headphones. But before we move forward, allow me to share with you a small video, a short video which is going to help you to see. आप सब देखेंगे कि शब्दों का क्या कमाल है. एक छोटे से शब्द को बदलने से हमारे माइंड में जो उसका मतलब है वो बदल जाता है. मैं यहाँ आपको एक वीडियो दिखा रही हूँ. Is the video visible to everyone? Yes, ma'am, it's visible. Yes, ma'am. Yes, madam, it is visible. इसमें देखिए कोई शब्द नहीं है, इस वीडियो में कोई डायलॉग्स नहीं है. बहुत छोटे से कुछ शब्द आपके स्क्रीन पे आएंगे और आप उन शब्दों के बदलाव को देखेंगे, so that we can all get this message what difference a choice of a word makes. जैसे मैंने साउंड एनर्जी की बात करी, उसी तरह से हम किन शब्दों का चयन करते हैं ये भी बहुत जरूरी है अपने मस्तिष्क को सही मैसेज देने का. सो देखते हैं हाउ टू बी प्रोडक्टिव इन स्पाइट ऑफ पैंडेमिक.
Is it a new virus or is it a new us? कुछ शब्द और सोचने का तरीका और हम एक नई हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं. And this is what we all have to share. I can see today, along with parents, so many of my Birla Public School teachers are there. Our very senior Pandey sir is here. And I remember how we all had these workshops, जहां हमने आपके बच्चों के लिए एक सक्रिय और एक बहुत ही environment जहां पे बच्चों का complete विकास हो उसके बारे में बातें की. आज जरूरी है कि हम उन चीजों को याद रखें और इस परिवेश में भी अपने माइंड को जिन शब्दों का इस्तेमाल करें वो बहुत हद तक डिसाइड करेंगे कि आप कैसा फील करेंगे. बहुत से लोगों को ये लगता है कि मैम इसका मतलब है कि जो कुछ हमारे चारों तरफ हो रहा है हम उसको डिनाई करें. नहीं, डिनाई नहीं करिए, एक्सेप्ट करिए, मानिए कि हाँ चीजें मुश्किल हैं, लेकिन उसके साथ भी हम अपने घर में अपने बच्चों के साथ और अपने परिवेश में किन शब्दों का इस्तेमाल करें अपने को चीजों को देखने का, वो हमारे लिए जरूरी है. जैसे कि यहाँ कहना चाहूंगी आप सभी से कि देखिए शायद बारिश हो रही है और एक इंसान ने खिड़की खोली, हमें खिड़की के बाहर बारिश दिखती है, हमारे मन में सोच क्या है? एक इंसान के मन में सोच है चलो कम से कम मॉनसून समय पे आ गए हैं, कम से कम खेती बाड़ी अच्छे से होगी, हमारे घरों तक अनाज और फल पहुंचते रहेंगे, कम से कम किसानों को राहत है कि अच्छा मॉनसून है. दूसरा इंसान खिड़की खोलता है, बारिश हो रही है, उसके मन का विचार क्या है? आज ही सोचा था बाहर बैंक जाएंगे, आज ही बारिश हो गई, सब तरफ पानी भर जाएगा, अभी तो कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है दुनिया में. तीसरा इंसान खिड़की खोलता है, बाहर बारिश है, हमारे मन में सोच क्या आती है पांडे सर? हमारे मन में सोच आती है कि अरे बारिश, हाँ बारिश का तो मौसम है ही है, मैं ढूंढूं मेरा रेनकोट और छाता कहाँ रखा है, बहुत दिन से इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि हमें बाहर तो जाना ही है. और चौथा पर्सन दरवाजा या खिड़की खोलता है, बारिश आती है, उसके मन में क्या है कि अरे भगवान अब बारिश को भी आज ही आना था और गंद फैल जाएगा, सब कुछ गीला हो जाएगा, चीजें अंदर करो, सब खिड़की दरवाजे बंद कर. अब देखो ये चारों ही लोगों के लिए हम में से ना कोई बारिश मंगा सकता है ना बारिश बंद कर सकता है, लेकिन हम बारिश को किस तरह से महसूस करें ये हमारा अपना पर्सनल चॉइस है. कितने लोग मेरे से एग्री करते हैं? हाथ ऊपर करके मुझे बताइए कि हाँ सलोनी मैम ये बात आपकी मुझे समझ आती है. थैंक यू उमेश सर, थैंक यू सुब्रतो रॉय सर, थैंक यू. अब देखिए कितने सारे लोगों ने हाथ उठाए और कितने लोगों ने डिजिटल हाथ उठाए. थैंक यू अभिनव प्रसाद सर, अजय सर, दिनेश सर. और यही है डिजिटल टेक्नोलॉजी, ये हमारे माइंड में नए प्रोग्राम्स बना रही है और हमें इन प्रोग्राम्स के साथ अपने मनोबल को भी बनाए रखना है कि नहीं? हमें ये बोलना बंद करना है कि अब हमें तो समझ नहीं आता, हमें समझना पड़ेगा. मेरे दो बेटे हैं, जैसे कि मैंने बताया, बड़ा वाला आईआईटी बॉम्बे का इंजीनियर है और इस समय गोल्डमैन सैक्स में सीनियर बिजनेस एनालिस्ट है. मैंने उस दिन उससे पूछा, जब वो मेरे पास था, इस कोरोना का एक बहुत अच्छा ये था कि बहुत से परिवारों में बच्चे बहुत दिन साथ रहे, खास तौर से नौकरी करने वाले, क्योंकि बच्चे उसके बाद तो माँ बाप के पास बहुत कम समय रह पाते हैं. मैंने उससे पूछा यही जूम चलाने में कि मुझे कोई दिक्कत आ रही थी और मैंने कहा बेटा ये जरा मुझे बताना कैसे चलेगा. आपको जान के बहुत मजा आएगा कि उसने मेरी बात सुनी और फिर अपने कमरे में गया. मुझे लगा अच्छा अभी कुछ लैपटॉप ला के मुझे सिखाएगा. उसने मुझे एक लिंक भेजा और उस पे लिखा था मम्मी इस लिंक को क्लिक करिए, आपको वीडियो दिखेगा, आप उस वीडियो को देख के समझ जाएंगी कि हमें क्या करना है. मेरा पहला रिएक्शन तो यही था कि ये क्या बात हुई, अरे तुम यही हो, मुझे आके इस लैपटॉप पे दिखा दो कैसे करना है, मैं समझ जाऊंगी. उसने कहा मम्मा मैं 10 दिन के बाद चला जाऊंगा, फिर आप कैसे सीखिएगा, आपको तो अब इसी के साथ सरवाइव करना है, तो लर्न करिए. और मुझे उसकी बात में बहुत विजडम नजर आई, बहुत दूरदर्शिता नजर आई और मैंने समझा कि देखिए यही है प्रोग्रामिंग. मेरे दिमाग में और हम में से ज्यादातर लोगों की आदत क्या है, हम चीजें सुन के समझ लेते हैं,
हम चीजें पढ़ के समझ लेते हैं, लेकिन एक वीडियो देख के इंस्ट्रक्शन समझना, फिर लैपटॉप पे उसको ट्राई करना हमें थोड़ा मुश्किल लगता है। और यही है पैटर्न्स का अडेप्टेशन। आज ये जो वीडियो विंडोज बंद है, इनका मतलब क्या है? शायद हम कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी बंद कर रहे हैं। आपने कभी ये महसूस किया है कि किसी टीचर के लिए कितना मुश्किल है कि वो ये काली खिड़कियों को पढ़ाए? हमें अपने बच्चों को ये सिखाना होगा कि बेटा ये जो खिड़कियां हैं ना, अब पूरी दुनिया आपको इस खिड़की से देख सकती है। तो अगर आज मैं किसी स्कूल का सेशन करती हूँ बच्चों का, और सारे बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में क्लास अटेंड कर रहे हैं, सबके वीडियो विंडोज खुले हुए हैं, तो मुझे पता है दिस इज अ स्कूल वेयर चिल्ड्रन आर सेइंग आई हैव एन अपॉर्चुनिटी टू फील आई एम पार्ट ऑफ समथिंग। और ये हमें मोटिवेशन देगा, सेटिस्फैक्शन देगा, कंटेंटमेंट देगा। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू सो मेनी टीचर्स एंड पेरेंट्स जिन्होंने वीडियो विंडो आज भी खुला रखा है, क्योंकि आपकी आंखें, आपकी मुस्कुराहट कहीं ना कहीं मुझे प्रोत्साहन दे रही है कि हाँ, हम रियल हैं, ये चीजें रियल हैं और हम एक दूसरे के पार्ट हैं। ये हमारा सोशल एग्जिस्टेंस है। पेरेंट्स, जब घरों में बच्चे डिजिटल क्लासेस कर रहे हैं, तो अगर हम थोड़ा सा इस बात को अपने बच्चों तक पहुंचाएं कि बेटा ये आपके टीचर के लिए भी कितना इंपॉर्टेंट है कि उसको दिखे कि हाँ, आप जब वीडियो विंडो खोल के टीचर की बात सुन रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनसे अपनी परेशानी डिस्कस कर रहे हैं, तो आप एक इंसान दूसरे इंसान को तवज्जो दे रहा है, वैल्यू दे रहा है। और ये हमारे सिर्फ संस्कार ही नहीं है, ये हमारी जरूरत है। क्योंकि कल को आज मेरा छोटा बेटा जो जर्मनी में एमएस कर रहा है, ही इज स्पेशलाइजिंग इन डिजाइन इन ऑटोमोबाइल, उनकी पढ़ाई कैसे हो रही है? और ये पढ़ाई उनकी पैंडेमिक के पहले भी ऐसे ही हो रही थी, पैंडेमिक में और बढ़ गया है, पहले भी था। उनका 3 दिन यूनिवर्सिटी में क्लासेस थी, वर्कशॉप्स थे, उनको ऑनलाइन कैसे पढ़ाया जा रहा था। टीचर इनको संडे को वीडियो भेज देता है, अब उस वीडियो में एक कार के पार्ट के मशीन की ड्राइंग है और उस मशीन पे पूरा वीडियो। उसके बाद इनके पास मेल आता है, मेल में उस वीडियो के बारे में कुछ खास चीजें पॉइंट्स में लिखी, और हर पॉइंट के नीचे एक वीडियो लिंक है कि ये पॉइंट जो आपको दिख रहा है, ये किस साइंटिस्ट ने, किस डिजाइनर ने डिस्कवर किया था, उसने 1978 में ये मॉडल जब पहली बार बना था तो क्या बोला था, उसके बाद 1997 में ये किसने रिवाइज किया, मर्सिडीज ने क्या किया था, फोर्ड ने क्या किया था, बीएमडब्ल्यू ने किस टेक्नोलॉजी को उसके बाद 1990 से इस्तेमाल किया। और इन हर लिंक पे आपको खुद जाना है, पढ़ना है, समझना है और नोट्स बनाना है। टीचर आपको क्लास में नहीं पढ़ाता है। उसके बाद इसके तीसरे दिन ऑनलाइन क्लास है, क्योंकि ये प्रोफेसर जर्मनी में नहीं है, ये प्रोफेसर बच्चों को स्वीडन से पढ़ाते हैं और ये अपने इस फील्ड के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। तो बच्चों के लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है कि हम इस टीचर से पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो उतने ही बड़े टीचर हैं, रिसर्चर हैं और आज भी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम है। तो 23 कंट्री के बच्चे ऑनलाइन उनसे पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज के। एक क्लास में 300 से ज्यादा बच्चे होते हैं जो डिजिटली कनेक्टेड हैं, और आपको वहां पे प्रेजेंटेशंस देखने हैं। टीचर जो है हर बच्चे से पूछता है कि आपने अपनी स्टडी करी, बताइए इस मशीन को आप और कैसे बेहतर बना सकते हैं। आने वाले समय में जब पेट्रोल डीजल नहीं रहेगा तो हम किस तरह से मशीन के इस पार्ट को इनोवेट और नया बना सकते हैं। अपना प्रेजेंटेशन दीजिए। 300 लोग प्रेजेंटेशन नहीं कर सकते हैं, तो आपको 10 के प्रेजेंटेशन को देख के समझना है कि हाँ, मैंने भी तो यही किया है, इसका मतलब ये गलत है। ओ, इसका तो ये आइडिया है, मुझे तो ये आइडिया अप्लाई करना चाहिए था, ये तो मुझे ध्यान नहीं आया। नोट्स बनाने हैं। कोई आपको नहीं कहेगा कि तुम लिखो, तुम कॉपी जमा करो, तुम्हारा बोर्ड एग्जाम। और मैं चाहती हूँ कि पेरेंट्स आप ये बात अपने बच्चों तक पहुंचाएं कि आज इस ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस ने हमारे बच्चों को एक फ्यूचर के लिए तैयार किया है। हम में से कितने हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे देश विदेश में जाके नाम करें। इंडियन यूनिवर्सिटीज में भी आज बच्चे अगर टॉप यूनिवर्सिटीज में जाएंगे तो डिफरेंट कंट्रीज के बच्चों के साथ पढ़ेंगे, और बहुत से उनके प्रोफेसर्स अब्रॉड है जो उनको इसी डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ाएंगे। आज एनसीईआरटी की हर किताब ऑनलाइन अवेलेबल है। आज वो अमेरिकन एम्बेसी हो या आपका ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी हो या हमारे नेशनल आर्काइव्स हो, आपके बच्चों को आपके घर में 1 क्लिक ऑफ द माउस पे अवेलेबल है।
पर क्या हम इन डिजिटल कंटेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि मैं दोनों की बात कर रही हूँ, डिजिटल ऑनलाइन क्लासेस में हमारे बच्चों का बिहेवियर और हमारा उसमें सहयोग। दूसरा, डिजिटल ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अनलिमिटेड एक्सेस, हम उनमें से क्या यूज कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, ये जो मॉडल्स बनाना, साइंटिफिक करना, Birla schools are always known for their scientific innovation and the kind of innovations they allow children to do. 3 years बहुत डिमांडिंग होते हैं और इस ग्रोथ के समय जब फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, सोशल इंटरैक्शन अपने एज ग्रुप से कम है, मैंने कितने बोर्डिंग स्कूल के बच्चों से बात की है जिनको लगा है कि मैम मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, मैम मैं पिछले 5 साल से बोर्डिंग स्कूल में हूँ, मैम मैं कभी 1 घंटे खाली नहीं बैठता था, स्कूल मुझे इतना बिजी रखता था, मैम आई एम फीलिंग सो इरिटेटेड, मुझे बहुत थकान लगती है। और मैं आप सब पेरेंट्स से कह रही हूँ कि अगर आपको दिख रहा है कि मेरा बच्चा बहुत लेजी हो रहा है, मेरा बच्चा रात के 12 बजे तक नेटफ्लिक्स देख रहा है, मेरा बच्चा सवेरे अगर क्लासेस नहीं है ऑनलाइन तो उठता ही नहीं है, अगर उठता है तो ऑनलाइन क्लास के 10 मिनट पहले उठ के मुंह धो के लैपटॉप के सामने बैठ जाता है, फिर वहीं उसका नाश्ता चाहिए, वहीं वो चाहिए, और वो एक तरफ क्लास में वीडियो बंद कर रखा है, दूसरी तरफ गेम खेल रहा है। तो पेरेंट्स, यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि हम किस चीज को प्रायोरिटी दे रहे हैं। इज दिस अबाउट फूलिंग स्कूल? इज इट अबाउट फूलिंग अ टीचर? Or is it about losing an opportunity to be a part of this digital world where your child has to adapt? I cannot sit and wait कि we will go back. इस समय बहुत से एडोलेसेंट इरिटेबल हो गए हैं, बहुत जल्दी गुस्सा हो रहे हैं, रेबेलियस हो रहे हैं, डिफाइंड हो रहे हैं। अगर ऐसा है तो प्लीज टेक हेल्प. Please talk to the school. I am sure school will provide you counseling. So many of their teachers, they are trained. I have also been one of the trainers for them, teachers as counselors and caregivers. And that is why इस समय टीन विड्रॉल का मतलब है हम जिंदगी के रोजमर्रा की चीजों से विड्रॉ कर गए। और वो विड्रॉल क्या है? हमें कुछ नहीं करना है, हमें अपने रूम में पड़े रहना है। मैं, मेरा लैपटॉप, मेरा फोन, मेरा हेडफोन, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं करना है, बस मुझे यही खाना मिल जाएगा, बस मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कमरे में बंद हूं। टीन गैजेट एंड सोशल मीडिया एडिक्शन, इट इज ऑल टाइम हाई। इस पैंडेमिक की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो यही है कि इसने टीन्स को गैजेट एडिक्ट कर दिया है। ये जरूरी है हम सबके लिए कि आज गैजेट्स की वजह से हम कनेक्ट कर रहे हैं। आज शॉपिंग हो, सामान मंगाना हो, दवाई खरीदनी हो, आपको आधार कार्ड चेंज कराना हो, आपको वैक्सीनेशन की बुकिंग करनी हो, सब कुछ फोन से हो रहा है। बैंक हमारे फोन से है, हमारे रोजमर्रा की ग्रोसरी शॉप भी हमारे फोन में ही आ गई। लेकिन ये फोन का यूसेज है, टेक्नोलॉजी का यूसेज है। लेकिन लगातार पबजी खेलना, लगातार यूट्यूब में वीडियो देखना, टिकटॉक वीडियोस को देख के हंसना, ऑनलाइन सोशल मीडिया में हजारों लोगों से अपनी फोटो शेयर करना, अपनी सेल्फी खींच के पोस्ट करते रहना, ये गैजेट का यूज नहीं है, ये मिस यूज है। एंड दैट इज वाई पेरेंट्स, जब आपके बच्चे एक्सेसिव गैजेट यूज करेंगे तो आपको ये साइंस दिखेंगे, और ये सटल साइंस हैं, ये बड़े छिपे हुए साइंस हैं। आप देखेंगे कि बच्चे को बहुत जल्दी एंजाइटी होती है, वो कुछ सुनना ही नहीं चाहता है, बात ही नहीं कर रहा, नहीं छोड़ दो, ये सब बात मत करो, छोड़ दो, अभी बंद कर दो, कमरा बंद कर दो, मुझसे बात मत करो। दे विल फील वेरी लोनली एंड लॉस्ट। मुझे नहीं पता क्या करना, ना मुझे कुछ लिखने का मन करता है, ना मैं कोई होमवर्क करना चाहता हूँ, बस मैं या तो फोन पे किसी से बात करना चाहता हूँ, या मैं इमेजिन करता रहता हूँ कि कब मेरा स्कूल खुलेगा और मैं वापस जाऊंगा। इन सभी चीजों को अगर आप देख रहे हैं बच्चों में, तो कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो करना जरूरी है। सबसे पहला जरूरी है, इनको नोटिस करिए और बच्चे को किसी एक्टिविटी में लगाइए। मैंने उन फुटबॉल खेलने वाले, बास्केटबॉल खेलने वाले बच्चों को देखा है जो आज अपने घर में एक स्किपिंग रोप से 4x4 की जगह में हजार बार स्किपिंग करके अपने वर्कआउट्स कर रहे हैं। उनके फोन पे ऐप है डाउनलोडेड जो उनकी दिन भर के स्टेप्स काउंट करता है। वो अपने घर के चारों ओर ही छत पे 4 बार ऊपर नीचे जाके अपना कैलोरी काउंट बढ़ा रहा है, और वो दिन भर में 10,000 स्टेप वॉक करता है।
मैंने इस बच्चे को सलाम किया जिसने मुझे कहा कि मैम मैं तो अपने स्कूल में फुटबॉल का कैप्टन था और इस साल तो मुझे बहुत बड़ा चांस मिलता है, बट मैं अपना स्टेमिना बढ़ा रहा हूँ। तो मैंने कहा बेटा आप क्या कर रहे हैं? बोले मैम एक ऐप है जिसमें मैं वर्कआउट करता हूँ 25 मिनट का हर दिन, और मैम मैं छोटे छोटे काम लेके मम्मी को मदद करने के लिए, हमारा 2 मंजिला घर है, मैं बार बार छत पे जाता हूँ, नीचे आता हूँ और कम से कम 10,000 स्टेप डेली। कुछ नहीं होता है मैम, तो हम नीचे जाके, बेसमेंट है वहां, कार पार्किंग है मैम, मैं उसमें जॉगिंग करता हूँ। इट वॉज सो इंस्पायरिंग कि यस, दिस इज अ चाइल्ड हु हैज अ फोकस। अपने को एक्टिव रखना, चाहे आप बच्चों के साथ योगा करिए, उनके साथ स्किपिंग करवाइए, उनको किसी भी तरह एक्टिव रखिए, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जो इतने दिन से ये जो सारी एक्टिविटीज आपके बच्चे करते आए हैं, जिस बिरला पब्लिक स्कूल पिलानी ने आपके बच्चों के अंदर इस एक्टिविटी का, इस फोकस के बीज बोए हैं, हमें इस साल भर में इन बीज से निकलते पौधों को पानी देते रहना है। और इसीलिए यहाँ शेयर कर रही हूँ, सभी टीचर्स को ये स्लाइड समर्पित है। मैंने करीब 5,000 बच्चों से ये फॉर्म भरवाया जिसमें हम रिसर्च कर रहे थे, और उनमें से एक सवाल ये था, व्हाट स्कूल मीन्स टू यू। देखिए बच्चों के क्या एक्सप्रेशन थे। ज्यादा से ज्यादा 73% बच्चों का जवाब ये था कि स्कूल वॉज अ स्ट्रक्चर। जब तक स्कूल मेरी लाइफ में था ना मैम, रोज स्कूल जाते थे तो एक रूटीन था, उठने का समय था, सोने का समय था, पढ़ने का समय था, खेलने का समय था। अभी तो मैम पैंडेमिक में कोई स्ट्रक्चर ही नहीं। बहुत से टीचर्स को लगता है ना मैम बच्चे तो पसंद नहीं करते हैं डिसिप्लिन, बट सच तो ये है सर कि बच्चों ने इस बार पैंडेमिक में महसूस किया कि मैम जो ये स्कूल का एक रूटीन था ना, उससे मैं अपनी लाइफ में बहुत बेटर था। ये लैक ऑफ रूटीन फ्रीडम नहीं है, ये लैक ऑफ रूटीन तो टोटल केओस है। अ प्लेस वेयर आई वाज माई सेल्फ, आई रियली लव्ड दिस। और ये एक दो बच्चों ने नहीं, बहुत बच्चों ने लिखा कि मैम स्कूल वो जगह है जहां मैं अपने आप को एक व्यक्तित्व महसूस करता था, मेरी एक आइडेंटिटी थी मैम, मेरा नाम था, मेरे पास एक बैज था। आप देखिए बिरला पब्लिक स्कूल ने कितनी तरह से आपके बच्चों में लीडरशिप एबिलिटी, किसी चीज को ऑर्गेनाइज करना, स्कूल सेंट्रिक एनवायरनमेंट है जहां पे चाइल्ड इज ऑलवेज द फोकस, बच्चों को आगे लाना। जितने भी आप स्कूल के वेबसाइट्स पे पिक्चर्स देखिए, आपको हमेशा दिखेगा बच्चे ही हर जगह आगे हैं। इसीलिए पैंडेमिक में जब बच्चे स्कूल के कैंपस से बाहर हैं तो उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं मेरी अपनी आइडेंटिटी, मेरा व्यक्तित्व कंप्लीट नहीं है। बहुत से छोटे बच्चों ने ये लिखा, मैम स्कूल एक ऐसी जगह थी वेयर आई वाज लर्निंग समथिंग एवरी डे। एंड व्हाट वाज दिस? बोले मैम ये सिर्फ स्कूल में किताबें नहीं थी, कुछ ना कुछ तो मैं सीखता था रोज। In school I was fitter, and I'm sure all of you will agree to this. School ने fitness कायम रखी थी. In school I was more engaged, and school there was more gadget control. Now I am addicted. Knock knock for all of us. Boarding school environment, what a kaleidoscope it is for social emotional wellness. Right from celebrating a Hindi Divas to doing a natak to being a part of a concert to horse riding to swimming to any and everything. This is what your children have been exposed to, parents. Let us see what we have to do right now that we prepare our children. ये the whole माइंड, ये जो हार्मोन्स की हम बात करते हैं, इनके बारे में बात करने से पहले आई वुड लाइक टू शो यू अनदर वीडियो. नाउ दिस वीडियो इज ऑल अबाउट, आई एम प्रेजेंटिंग टू यू a short video where a very renowned thinker and speaker, a person who has been known for his wisdom and connect to creating a society with a difference. ये जो कह रहे हैं, इन्होंने ये बच्चों को उनके क्लास 12 के पास आउट के समय ये स्पीच दिया है. मैं उसी का एक छोटा सा भाग आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें हम सबके लिए मैसेज है. और ये मैसेज क्या है? ये मैसेज हम सब के लिए यही है कि इस पैंडेमिक ने अब बच्चों को शायद उम्र से पहले बड़ा कर दिया है. उनको इस नई दुनिया के लिए हमें तैयार करना पड़ेगा, और इस तैयारी को करने के लिए सबसे बड़ा सच क्या है? आज बच्चे और हम दोनों ही पहली बार पैंडेमिक देख रहे हैं, तो हम सबको इसको बराबर से ही डील करना पड़ेगा. लेट अस हियर
what he has to say. इसमें सबटाइटल्स भी हैं and I hope कि आपको clearly सुनाई पड़ेगा. It is there on your screen. Pandemic has finally torn back the curtain on the idea that so many of the folks in charge know what they're doing. Very powerful remarks. You're going to have to grow up faster than some generations. This pandemic has shaken up the status quo and laid bare a lot of our country's deep-seated problems, from massive economic inequality to ongoing racial disparities to a lack of basic health care for people who need it. It's woken a lot of young people up to the fact that the old ways of doing things just don't work. That it doesn't matter how much money you make if everyone around you is hungry and sick. And that our society and our democracy only work when we think not just about ourselves, but about each other. It's also pulled the curtain back on another hard truth, something that we all have to eventually accept once our childhood comes to an end. You know, all those adults that you used to think were in charge and knew what they were doing, turns out they don't have all the answers. A lot of them aren't even asking the right questions. So if the world's going to get better, it's going to be up to you. That realization may be kind of intimidating, but I hope it's also inspiring. With all the challenges this country faces right now, nobody can tell you, no, you're too young to understand, or this is how it's always been done. Because with so much uncertainty, with everything suddenly up for grabs, this is your generation's world to shape. Since I'm one of the old guys, I won't tell you what to do with this power that rests in your hands, but I'll leave you with 3 quick pieces of advice. First, don't be afraid. America's gone through tough times before. Slavery, civil war, famine, disease, the Great Depression, and 9/11. And each time, we came out stronger. Usually because a new generation, young people like you, learned from past mistakes and figured out how to make things better. Second, do what you think is right. Doing what feels good, what's convenient, what's easy, that's how little kids think. Unfortunately, a lot of so-called grown-ups, including some with fancy titles and important jobs, still think that way, which is why things are so screwed up. I hope that instead you decide to ground yourself in values that last, like honesty, hard work, responsibility, fairness, generosity, respect for others. You won't get it right every time. You'll make mistakes, like we all do. But if you listen to the truth that's inside yourself, even when it's hard, even when it's inconvenient, people will notice. They'll gravitate towards you. And you'll be part of the solution instead of part of the problem. And finally, build a community. No one does big things by themselves. Right now, when people are scared, it's easy to be cynical and say, let me just look out for myself, or my family, or people who look or think or pray like me. But if we're going to get through these difficult times, if we're going to create a world where everybody has opportunity to find a job and afford college, if we're going to save the environment and defeat future pandemics, then we're going to have to do it together. So be alive to one another's struggles. Stand up for one another's rights. Leave behind all the old ways of thinking that divide us. Sexism, racial prejudice, status, greed, and set the world on a different path. I do hope that this video made a lot of us look at some words. Something which really touched me here was that yes, human beings are survivors. हमने इससे भी बुरी स्थिति देखी है, हम survive करेंगे, right? वो डार्विन की जो थ्योरी थी ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो आज भी वापस हमारे ऊपर एप्लीकेबल है. वी विल सर्वाइव. बट द बेस्ट पार्ट इज दैट वी हैव टू बिल्ड अ कम्युनिटी अराउंड अस. जब इंसान का एसक्यू हाई होगा ना, सोशल कोशन, सोशल अवेयरनेस, ये जरूरी है. क्योंकि
अकेले हम सब के लिए कुछ भी ऐसा करना बहुत मुश्किल है। एंड दैट इज वाई पेरेंट्स, आई थिंक सबसे जरूरी है कि इस सोशल डिस्टेंसिंग के माहौल में भी हम सोशल कनेक्ट बनाएं। ह्यूमन बीइंग्स के लिए ये जो बच्चे एक साथ दौड़ते हैं, खेलते हैं, साथ में पढ़ते हैं, हंसते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बट ये कहीं ना कहीं उनके अंदर सारे हार्मोन्स को बैलेंस कर देता है। यू फील अलाइव, एंड दैट इज वाई ये जो फेस टू फेस इंटरेक्शन है, यही इंसान के डिफेंसेस, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेस को जन्म देता है। So we need to make it a point to connect and in person with family and friends. देखिए कि कहीं हमारे टीनेजर्स इस पैंडेमिक में लोनर्स तो नहीं हो रहे हैं, कहीं वो पूरी तरह से एक गैजेट के पीछे छिप तो नहीं रहे हैं, कहीं वो डिस्ट्रेस तो नहीं हो रहे हैं, कहीं उन्होंने एक अपनी वर्चुअल दुनिया तो नहीं बना ली है कि बस यही तो है, यही लैपटॉप है, यही मेरा सब काम हो जाए। That will not be there. हमें यहाँ पे एक बैलेंस स्ट्राइक करना है। वी हैव टू हैव अ लॉट ऑफ रियल टू बी बैलेंस्ड विद वर्चुअल। एंड यहाँ पे जरूरी है कि हम अपने प्रिंसिपल सर की लीडरशिप, अपने टीचर्स और हम सब पेरेंट्स एक कम्युनिटी, बोर्डिंग स्कूल अपने आप में ही एक कम्युनिटी है और हमें इस समय अपने बच्चों को ट्रस्ट करना पड़ेगा, उनकी मुश्किल को समझना पड़ेगा और अपने तरीके से उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी, उनको खींचना पड़ेगा। मैंने अपने दोनों बॉयज को इस पूरे पैंडेमिक में बहुत सारी कुकिंग कराई। They understood that yes, it's a life skill. We have to survive. We cannot be ordering food from Zomato and Swiggy. We have to learn basics of cooking, and they did that. They learned basic cooking so that they can eat healthy food. They learned what are the basic spices and how to manage a fridge and how to keep things half cooked and stored so that before going to office I can cook a fast meal. Build resilience. बच्चों को चीजों से डरना मत सिखाइए, उनको दिखाइए कि हाँ मुश्किल था लेकिन देखो इस तरह से हमने डील किया। आने वाले समय में लोग कहते हैं कि बहुत से ऐसे पैंडेमिक और एपिडेमिक्स बच्चों के सामने आएंगे, इसीलिए बच्चों को रेजिलिएंट बनाइए। और रेजिलियंसी क्या होती है? आई स्ट्रेच एंड देन आई कम बैक। एंड व्हाट इज दिस स्ट्रेचिंग? स्ट्रेचिंग इज मुश्किल समय में हम अपनी एबिलिटीज से बहुत ज्यादा चीजों को करने की क्षमता रखते हैं। टीच देम टू डील पेरेंट्स। आप बच्चों के लिए बोर्डिंग स्कूल को आपने चूज किया, बोर्डिंग स्कूल ने आपके बच्चों के अंदर बहुत सी चीजों को एक बीज की तरह बोया है। अब इस समय we have to see how are we nurturing it. We don't have to go back and make the children become lazy, become gadget addicted. छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें करने की जरूरत है, because we are all moving towards the schools will be reopening. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे बच्चे इतने लेजी, इतने आउट ऑफ रूटीन हो चुके हैं कि अब जब वापस स्कूल जाएं तो दे कैन नॉट एडजस्ट, दे आर फॉलिंग सिक। ऐसा नहीं होना चाहिए। We have to teach our children technology for education. Excessive use of gadgets का मेन कारण यही है, लोनलीनेस, बोर्डम, क्या करूं कुछ करने को नहीं है, और एक बहुत बड़ा माइंडसेट। इंडियन डायस्पोरा में हमने ज्यादातर स्मार्टफोन का, टैब का इस्तेमाल किया है इंटरटेनमेंट। You have to understand that technology एजुकेशन के लिए अनलिमिटेड एक्सेस देती है। कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जिसके बारे में बच्चों को डिजिटल कंटेंट नहीं मिले। पिछले साल भर में जितना डिजिटल कंटेंट हमारे को मिल चुका है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो बच्चा जानना चाहे। बच्चा करियर प्लानिंग करना चाहे, 10th 12th के बाद सब्जेक्ट सिलेक्शन क्या होगा, 12th के बाद मैं किन कॉलेजेस को अप्लाई करूंगा, फॉरेन हो या इंडियन हो, हर यूनिवर्सिटी के वेबसाइट्स हैं, लिंक्स हैं, आप वहां जाके अपनी क्वेरीज कर सकते हैं, लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा समय है। जिनके भी बच्चे सेकेंडरी सेक्शंस में हैं, अपने बच्चों के साथ इन्वॉल्व होइए, गैजेट्स का इस्तेमाल करिए, उनका प्रोफाइल बनाइए, उनके सर्टिफिकेट्स को स्कैन करिए, बच्चों को बोलिए कि चलो तुम अपना डिजिटल प्रोफाइल बना के रखो, अपने सारे सर्टिफिकेट्स को स्कैन करके लिखो, तुम अपने हर क्लास के बारे में लिखो कि तुमने क्या सीखा है, तुम अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में लिखो, अपने टीचर से बात करके इंगेज करके अपने लिए प्रोफाइल बनाओ ना। 1 साल बाद तो तुमको फॉरेन एप्लीकेशन में लिखना पड़ेगा पर्सनल प्रोफाइल, बात करो इस समय।
तो बच्चों के लोनलीनेस को पर्पसफुल बनाना है, बच्चों को प्रेरित करिए। आने वाले समय में सबसे बड़ा स्किल जो बच्चों को चाहिए होगा, डू दे नो अ फॉरेन लैंग्वेज, डू दे नो अनदर इंडियन लैंग्वेज, डू दे नो मोर अबाउट गांधीयन प्रिंसिपल्स। बिकॉज मैंने कई बार बच्चों को सुना है कि मैम व्हेन आई वेंट टू दिस फॉरेन यूनिवर्सिटी दे आस्क्ड मी अबाउट गांधी, दैट यू आर फ्रॉम इंडिया, टेल अस अबाउट गीता। बोले मैम हमें तो कुछ पता ही नहीं था। सो ये बहुत अच्छा समय है कि हम अपने बच्चों को उनके फ्यूचर के लिए टेक्नोलॉजी को उनके एजुकेशन के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए यूज करना सिखाएं। इसके लिए टीचर्स भी उनकी मदद कर सकते हैं, उनको खास तौर पे ऐसे वेबसाइट्स बता सकते हैं जहां पे बच्चे लैंग्वेज सीखें। मेरे बेटे ने जो जर्मन स्कॉलरशिप मिली उसका सबसे बड़ा रीजन ही था कि उसको जर्मन लैंग्वेज आती थी और उसने जर्मन लैंग्वेज क्लास 9 से सीखनी शुरू की थी, जो आज उसका करियर है और आज उसका लाइफस्टाइल है। सो पेरेंट्स, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, गैजेट्स का इस्तेमाल अपने बच्चों के साथ करिए, गैजेट मैनेजमेंट के साथ। And that is why all Birla schools, I have been sharing this with them, that limit the mindless use of gadgets. Look at these lovely pictures of your children in Birla Public School. They all have been engaging into things which is mind and body fitness. और ये जो सारी चीजें हैं ये क्या करती हैं? हैप्पी हार्मोन्स क्रिएट करती हैं। डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, आप बहुत इनकी बातें सुनते होंगे आजकल न्यूज में, न्यूज़पेपर्स में, टॉक शोज में लोग इनकी बात कर रहे हैं। ये जितनी भी एक्टिविटीज हैं जिनको हम करिकुलर या को करिकुलर मानते हैं, ये एक्चुअली बच्चों के ब्रेन में डोपामीन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन ये सिक्रीट करती हैं और इनके सिक्रीशन से बच्चों को एनर्जी मिलती है, हमको इन्हीं से पॉजिटिव थॉट्स मिलते हैं। ये हमारी लर्निंग एबिलिटी, मेमोरी, स्लीप, डाइजेशन सभी को रेगुलेट करते हैं। और अभी जरूरत ये है कि जब स्कूल्स की बिल्डिंग्स बंद है, हमको पेरेंट्स और टीचर्स को ये पार्टनरशिप रखनी है कि हम किस तरह से टीनेजर्स में ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी रखें। ABCD ऑफ डिजिटल एजुकेशन इज पेरेंट्स एंड टीचर्स पार्टनरशिप, एप्रिसिएशन एंड अडेप्टेशन, यही ABCD है। हमें एक दूसरे को अप्रिशिएट करना है और ट्रस्ट करना है। ये वो समय है जहां पेरेंट्स एंड टीचर्स किसी भी स्कूल के हों और खास तौर से बोर्डिंग स्कूल के, वी हैव टू अप्रिशिएट एक दूसरे की मजबूरी, एक दूसरे की सिचुएशन को समझना है और अडेप्ट करना है। ये माहौल हमें बनाना है कि नहीं, देयर इज बिलीफ एंड ऑप्टिमिज्म। हमें लगातार कम्युनिकेट करना है एक दूसरे से किसी भी माध्यम से। जो भी डिजिटल टेक्नोलॉजी हमारे पास है, हमें कम्युनिकेट करना है। हम नहीं कह सकते हैं कि कनेक्शन एरर है, हम तो नेटवर्क प्रॉब्लम है। आज सोशल नेटवर्क क्रिएट करना हमारी जिम्मेदारी है। एंड दैट इज व्हाई, चाहे वो हम लैपटॉप की स्क्रीन पे विंडोज में हो या रियलिटी में हो, द टाइम इज लेट अस मूव टुगेदर। और यहीं पे मैं शेयर कर रही हूँ ये यूट्यूब लिंक। आप में से जो भी चाहे इस वीडियो को जरूर देखें। आज हमारे पास एक सीमित समय है, इसलिए ये आधे घंटे 40 मिनट का वीडियो है। डॉक्टर कैरन मैप, ये सीनियर लेक्चरर हैं ऑन एजुकेशन एट द हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन। जब मैं पेरेंट्स और टीचर्स की पार्टनरशिप की बात कर रही हूँ, इन्होंने पिछले 20 साल यही काम किया है और इन्होंने पेरेंट एंगेजमेंट कॉन्फ्रेंसेस किए हैं दिखाने के लिए। उनका रिसर्च, डॉक्टर मैप्स रिसर्च एंड प्रैक्टिस फोकस has been on the cultivation of partnership among families, community members and educators that support student achievement and school improvement. They talk about how school leadership along with parents who are progressive and who come forward and we create a trusting relationship, हम बच्चों के लिए एक इतनी मजबूत नींव बना देते हैं जीवन भर के लिए। I think after this pandemic outbreak, it is time for us to revisit this partnership with each other. And that is why, parents, it is time to encourage blended learning mode. School leadership is all about being in school, being safe.
हमें ट्रस्ट करना है एक दूसरे को, जैसे हम अपने बच्चों को घरों में सेफ्टी सिखा रहे हैं। देखिए, कोई भी प्रेमाइस, कोई भी मॉल, कोई भी बाजार सेफ तभी है जब हम जिम्मेदारी लें। तो जब हमें अपने बच्चों को स्कूल वापस भेजने की तैयारी करनी है, हमें अपने बच्चों में ये जिम्मेदारी देनी है। और ये जिम्मेदारी कैसे आएगी? जब हम इस जिम्मेदारी को समझें कि बच्चों को सेफ रखने के लिए बच्चों को खुद जागरूक होना। And that is why सारे schools across the country, whether it is Birla School Pilani, whether it is Birla Public School, whether it is Birla Balika Vidyapeeth, I am talking to all of them, and I am talking to so many other schools. I want each one of you to understand this, that our schools are not buildings. Birla Public School Pilani is a school of diverse opportunities to explore self and to be ready for society. And how we will do it is by engaging with our children. We will have to give responsibility to our children that yes, you will have to trust. और ये समय है schools और teachers को अपने parents के साथ, parents का school के साथ, can we hold on to life, hopeful, helpful and healthy. That is what my message is. There are so many ways for us to scatter, but there is only one way for us to gather. That is to hold on to each other. Hopeful, helpful and healthy. हमें अपनी physical health का ध्यान रखना है, एक दूसरे को trust करना है. We have to build in that bonds, because schools like Birla Public School Pilani, they were always schools with a big heart, a school which stretches. And I think from January to March, they proved that with all possible changes and adaptation. So I think this is the time where we have to trust, we have to believe, we have to train, we have to inform, and we have to involve each other. I do hope that pandemic will not anyway damage this beautiful relationship of trust between parents and schools, which creates the environment for children to grow, children to thrive, and children to become the wonderful people they are. Today, for the last 10 days, I've been speaking to parents of all the 4 boarding schools under Birla Education Trust parents. And I do hope that we are going to create history by parents coming forward. Because I want to deliberate and summarize, मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी यहाँ, न्यू नॉर्मल, न्यू हैबिट्स, और ये बीज बोने जैसा ही तो है. और इसीलिए उस दिन एक बहुत बड़े से पेड़ के सामने खड़े होके मैंने ये सोचा कि ये विशाल बरगद का पेड़ किसी दिन तो एक बीज ही था ना. तो अपने बच्चों के साथ भी हमें शायद यही रखना है, और अपने स्कूल के साथ के ट्रस्ट और रिलेशनशिप में भी हमें यही रखना है. अगर इसे हमें विशाल बनाना है, एक बहुत बड़ा छायेदार वृक्ष भी शुरुआत तो एक बीज से ही करता है. आज इस पैंडेमिक में व्हाट आर वी प्लांटिंग? क्या हम फियर प्लांट कर रहे हैं, डिस्ट्रेस प्लांट कर रहे हैं, डिसएंगेज कर रहे हैं, या हम वापस से कनेक्ट प्लांट कर रहे हैं, बिलीफ प्लांट कर रहे हैं? काउंसलिंग इंटीग्रेट्स माइंड एंड हार्ट, एंड मेंटल हेल्थ वही है जहां मेरा माइंड और मेरा बॉडी, माय हार्ट विच इज सिंबल ऑफ माय इमोशंस, we are able to listen to each other. We can show yes we care, and we are always there. And I think I can say that Birla Public School Pilani is one school which is always there with you parents. It is time for you also to be with them, and we together plan the next step. We together plan with each other with trust, because मुश्किलों का दौर है, मुश्किलें आपकी भी हैं, मुश्किलें हमारी भी हैं, लेकिन हम इन मुश्किलों में एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं है, एक दूसरे से अलग अलग नहीं है. We are together, and that is why parents, I do hope that today with this short interaction, we are all able to look at the larger challenges in front of us, the realities which we are facing. And I would request the captain of this entire community and the team, Captain Alokesh Sen sir, to share his thoughts on this presentation, and then we will open the forum
for interaction, for your questions and your opinions. We are almost 120 of us who are here on this Sunday evening together, thanks to Birla Public School, Pilani. So thank you so much. Over to you, Captain Alokesh Sain sir, for your statements and views. Thank you, Mrs. Saloni Priya, ladies and gentlemen, and my dear teachers. We have seen very engrossing, very absorbing, and very motivating and very positive, session, and it forced us to reflect upon ourselves, and it was so much connecting with all of us, because we have been the issues which were discussed. We all have been facing this particular issues, not all the issues together by one, but each and every one. I am sure that we, all of us, even if I'm a principal, I'm a father also, I'm a husband also, I'm a principal also, I'm the guardian also. So every one of us, we are not immune to this particular effect of the pandemic. But as Mrs. Saloni Priya says, like the rain, it is raining outside. आप लोगों ने देखा कि कैसे कैसे नजरिया जो है positive or negative, our perception. So we have to change our perceptions. And that video which was shown, and we have heard how about the American 9/11 incident. I have gone myself to New York to see that Twin Tower, how it was destroyed about 6-7 years back, and then how they have come back. They have made another building there. You can't even believe that it has all been converted into dust by that bombing and all these things, that accident, 9/11 accident. So even we also have proved, we have stood up all kinds of challenges in our country as well, and we have seen how we have handled the first surge of the pandemic, and we have also seen the second surge. Second, so much of criticism, so much of okay, all these things are fine, but the way we have handled when the daily cases were going 4 lakhs plus. So how we have tackled, and I'm sure that we are all, it's the time basically for the new normal is more of a time for your sharing, your caring, your interaction, your collaboration, your trust, and also expressing gratitude to each other, because everyone, that is one of the mantra basically. And we are, as mentioned, that we are a community. It's not teaching community. We are a basically parent teachers community. Our focus is your children. Your focus is your children. Our focus is also your children. I have been always harping, and I consider as a principal all child to be an asset. And definitely we will all get together, combine together, join our hands together, collaborate with each other, and I'm sure that will come out of all these things. I'm sure that this particular lecture has been of immense help to all of us, both the teachers as well as the parents. And there are hardly any question, only one question which has come. I can see that you must have got the answer, but still I'm repeating. When siblings are fighting, apparently not respecting each other and not helping each other, what should be our that is as a parent's approach? Yeah, Mrs. Saloni Priya, over to you. You are very right, sir, that this being at home, we are reinventing many relationships with siblings, with this. देखिए, any kind of conflict, Alokesh sir, whether it is sibling, whether it needs to be heard. We need to hear both aspects and we need to basically create. Siblings के लिए मैं आलोकेश सर हमेशा यही कहती हूँ कि कभी कभी ईश्वर हमें दो पौधे देता है ना, एक गुड़हल का और एक गुलाब का. अब दोनों में ही लाल फूल खिलते हैं, लेकिन अगर मैं गुड़हल के पौधे को काट दूंगी कि वो गुलाब बन जाए, तो वो गुलाब नहीं बनेगा, वो मरी जाएगा. और जिंदगी में देखिए, जहां गुलाब इस्तेमाल होता है वहां गुड़हल नहीं होता है, लेकिन माँ के मंदिर में शायद गुड़हल चढ़ता है, गुलाब नहीं चढ़ता. So the identity of two children, when siblings are there and they start having conflicts, the role of parent is to help each child. होता क्या है सर, हम लोग ज्यादातर मीडिएशन करने लगते हैं, तुम सही हो, तुम गलत हो, तुम बड़े हो, तुम छोटे हो, तुमको समझना चाहिए, तुम लड़का हो, तुम लड़की हो. ये इश्यूज नहीं है. इश्यूज क्या है, तुम दोनों दो डिफरेंट आइडेंटिटी हो और तुम दोनों को एक दूसरे के डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करना है.
मुझे कभी, मैंने हमेशा पेरेंट्स को सिखाया कि आपको सिबलिंग्स में ये कहना चाहिए कि मुझे 2 आइडेंटिकल बच्चे नहीं चाहिए थे, इसलिए ये कहना कि तुम उसको ज्यादा प्यार करती हो, तुमको तो वही सही लगता है, तुम तो मेरी बात नहीं सुनती हो। मेनी मदर्स आर स्माइलिंग कि ये होता है कि नहीं सिबलिंग्स के, आप अगर समझाने जाओ, हाँ आप तो उसी की बात सुनते हैं, आपको तो मैं ही हमेशा गलत लगता हूँ। We have to not come in and say कि मैं तुम्हारा झगड़ा सुलझा रही हूँ. We have to come in and say both of you are different and both of you have to understand that you both have to be different, but you have to respect each other. And that is why, sir, you know, the 3 R's, any kind of a conflict, it is always about respect, then it is about relating, एक दूसरे की बात सुन के relate करिए कि दूसरा क्या कहना चाहता था, and then it is respect, relation and relationship के बाद आता है responsibility. ये हमारी responsibility है कि हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करें. So Okay, I hope any other question from the parent side or the teacher side? You may please. I can see some hands are raised, sir. So if they could help. Yeah. The parents hands are raised. Only now one hand is raised. I think it has not been lowered. This is continue to be raised for a long time. Yeah. Yes, yeah, sir. please. सुंदर पाल सर. हाँ जी, बोलिए सर, आपकी आवाज हम सुन पा रहे हैं. बोलिए सर, बोलिए. Anyone who wants to say something? Is it me who is being highlighted? Yes, बोलिए, ma'am. आप बोलिए मैडम, no problem. Sir, I have a question. Like ma'am said, in the classes, the child has to keep the video on so that it is a better connection with teacher and the student, right? Yes, my ma'am. elder son is in Birla Public School, so the videos are always on. The youngest one is in different school in Kolkata. So there, what I see, many teachers, they don't switch on the video. And I tell my son, ki you switch on the video. It's not a matter that your teacher is switched on or not. But he always tell me, ki mummy, teacher ka on nahi hai. Why are you telling me to switch on the video? So what should I do in that case? I am very happy to know, ma'am, that at least your elder son, Birla Public School, Pilani, that tradition is there of teacher-student connect. And I can vouch for that. And you can see the difference. Unfortunately, ma'am, हमें यहाँ पे as a parent यही कह सकती हूँ कि हमें अपने बच्चों को ये जिंदगी में हर बार सिखाना पड़ता है कि दूसरे के गलत होने से आप गलत होने की चॉइस करोगे तो इट इज गोइंग टू अफेक्ट यू, नॉट द अदर पर्सन. और मैम ये आपको जिंदगी में बच्चों को बार बार सिखाना पड़ेगा, चाहे वो लाइन बनाना हो, चाहे धक्का देना हो. मम्मी बाकी धक्का दे रहे थे इसलिए मैंने भी दिया. मुझे याद है आलोकेश सर, माय यंगर सन टोल्ड मी, सब धक्का दे रहे थे, तुम किसी और को तो नहीं कहती हो, मैंने धक्का दिया तो मैं गलत हो गया. So you know, we will always have to teach children that when we make choices, is it about us or is it about others? तो मैडम प्रिंसिपल का भी एक जवाब सुन लीजिए. आपका छोटा बच्चा जो है उसको एडमिट करा दीजिए बिरला पब्लिक स्कूल में. Sir, he actually wants to go, but we are like, what we will do if both of us, them are there? नहीं, this is in a lighter way. Don't worry. But Yeah. solution है. But I would add here, Alokesh sir, that when you send one child to boarding, don't keep the other one for yourself. This child will grow up and feel ki why was I not giving that opportunity. Yeah, ma'am, true. But right now he's enjoying because his elder brother is more than 1 year he's at home. So he's enjoying that phase. Now he's not interested to go to hostel now. No, he will be interested. This is not a permanent, scenario. It's going to open up, and both jaldi it's going to open up. The things, the way it's happening, it's going to open up, and it's going to be a permanent feature. That's what we are all heading towards, that particular scene. Absolutely. Yeah. Any other question? Yes, sir, I have a question. Thank you, ma'am. Thank you for your question. Thank you, ma'am. Sir, I have Thank a you, question. sir. Yeah, बोलिए sir, बोलिए. कौन है? Yes, sir. Sir, actually, just now the ma'am said that students should connect with teachers, and they should always on the video, and they should sit properly in a school uniform so as to connect with teachers. So I would request you, sir,
that you should also, but in school, it should be strictly followed, because I won't say that 100% it is not being followed, that students need to on the video, but in all the classes they are not doing. Students are not doing that, so it should be strictly followed. As I also feel that this should be there, at least when they are not in school, so they should connect with teachers and all the other students. Yeah, we will. This particular point came up in my interaction. So we have Okay, sir, I discussed need this that point. Yes, interaction. we will. We have Yeah. discussed amongst our teachers also. Yesterday we had a staff meeting. This point has been discussed. So we will ensure. And We will some ensure more this. one more question, sir. And yoga classes and all are happening, but it is not mandatory, and students are not. My son also is not doing the classes. So I would request that when they are not in school, extra some other classes also during the, apart from the school classes, should be there, so as to keep them engaged. We have taken a note of this, sir. We have Please, taken sir. a note of this. Yeah. Next. Thank you. Thank you. Any other question? Can I go next, please? Neetu Agrawal. Yes. Yes, madam. Can I speak now? Who is Yes, speaking? ma'am, please Yeah. tell us Yeah. your name. Neetu It's- Agarwal, ma'am. Yes. हाँ जी, मैम बोलिए. सबसे पहले तो मैम मैं आपके सेशन को मैंने बहुत एंजॉय किया और बहुत ही अच्छा था, बहुत ही नॉलेजेबल था. थैंक यू मैम for giving us so much time to spare for sparing your time to us. And Thank you, ma'am. Thank you so much. और बिरला पब्लिक स्कूल के लिए तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि वो तो बहुत ही टीचर्स इतना अपना एफर्ट दे रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए. ऑनलाइन पढ़ाना इज नॉट इजी मैम, फॉर स्टूडेंट्स एंड फॉर टीचर्स आल्सो. Thank you, ma'am. Thank you for encouraging. आई एम अप्रिशिएटिंग देम, क्योंकि बच्चों को इतना इंटैक्ट रखना और पढ़ाना और मतलब टू मेक देम अंडरस्टैंड, कुछ भी समझ रहे हैं बच्चे, मतलब एटलीस्ट पढ़ रहे हैं, दे आर कनेक्टेड विद देयर स्कूल. Thank you, एंड ma'am. Thank you for saying that. thank you to Birla Public School and Lokesh sir. And sir, there is a small request to Yeah, Saloni please. ma'am बोलिए. and in school also. सर एक ऐसा सेशन, एक छोटा सेशन बच्चों के लिए भी होना चाहिए, बिकॉज मैम ने जितने अच्छे से हमको गाइड किया है, या हमारा जो भी कंसेप्ट एक छोटा छोटा सा प्रॉब्लम था, वो Your बहुत ही request, आराम. I got it, madam. Your request has been noted. We will consider this. We will seriously consider. एंड वन करियर काउंसलिंग शुड बी देयर सर, क्योंकि बच्चों को अभी थोड़ा कंफ्यूजन है कि हम क्या. किस क्लास में है आपके बच्चा? किस क्लास में है? 10th B में है सर, एंड आई एम फ्रॉम सतना MP. मैडम, बहुत सारे जो करियर काउंसलिंग का हमने सेशन छुट्टी का इसमें करवाए और लिंक भी भेजे थे बहुत सारे. ये अभी रिसेंटली जो है जयपुर करियर फेस्टिवल में हम सारे पेरेंट्स को और बच्चे को लिंक भेजे थे. इनफैक्ट सर एक लिंक, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, बट लिंक के थ्रू नहीं, मतलब मैं चाहती हूँ एक ऐसा सेशन हो जिससे कि बच्चे कनेक्ट हो, मतलब जो भी रहे सामने. ठीक है, समझ गया. नो व्हाट आई एम सेइंग कि ये तो हम करेंगे. देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, हम करेंगे. दैट इज ऑलरेडी इन आवर प्लान. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू बिरला पब्लिक स्कूल. यू आर वेलकम. और कोई सवाल? So, sir, if I can go next. Good evening, everyone, and good evening, Saloni ma'am. So first Yes, of all, sir. really thankful for your very, very insights, and I think you talked about the new world norms and about the digital thing. So what the other ma'am also said, is it possible? I saw this session was getting recorded. So in your assessment and Lokesh sir's assessment, is it okay if we can get this link? And I think if we can just share this link and sit with us, our kids. I got it. We will do something about it. Yeah, we'll do something about it. And Sure, thank you for your suggestion. Thank you, sir. We have got about. Thank you, Mr. Jain. Yeah, Thank you so much. And I am sure Alokesh sir will definitely try and do the best. Yeah. We have the last question because we will have to finish up the session. Yeah. Any other question? Any question from the teachers? Yes, sir. Any one of the teachers could speak? Am I audible? Yes, You are ma'am. audible. You are audible. Please identify yourself so that we know who is speaking, because it is being minuted also. We are minuting this also. सर मैं नेहा जैन, मेरा बेटा 9th में है, दिव्यांश जैन. Yeah, please बोलिए. मेरा बेटा दिव्यांश जैन 9th में है. Yeah. Thank you so much for this meeting and this session.
काफी नॉलेजेबल था फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड सर, जैसे अभी बच्चे पैंडेमिक सिचुएशन फेस कर रहे हैं और सारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो एक्टिविटीज इन लोगों की बहुत लिमिटेड हो गई हैं और फिजिकल एक्टिविटीज बहुत कम हो गई हैं। बीइंग अ सिंगल चाइल्ड, मेरा बेटा बहुत सफर करता है इन चीजों को, तो मैं उसकी हेल्प कैसे कर सकती हूँ? ये देखिए, ये जो है हमने आपका जो है नोट कर लिया। वी हैव बीन डूइंग जितना पॉसिबल है, नया नया तरीका जो है, हम ऑनलाइन क्या क्या फिजिकल, हमारे स्पोर्ट्स टीचर, हमारे स्पोर्ट्स के जो एचओडी है मिस्टर आनंद सिंह, वो भी देख रहे हैं इसको। हमने इसके ऊपर जो है कुछ चर्चा तो किया था। योगा तो होता है, बाकी क्या हो सकता है वो हम करेंगे। ये Sir, if I may add here, Yeah. thank you, ma'am, for your appreciation, and I am sure it is tough to engage children, especially after they have had a gamut of activities in a boarding school. But something which a lot of parents have found very effective is you can allow your child to learn chess online. ऑनलाइन चेस जो है बहुत अच्छी माइंड एक्टिविटी है, बच्चों की एनालिटिकल स्किल्स को बढ़ाता है। उनको लगता है हम गेम खेल रहे हैं, और ऑनलाइन चेस में बच्चे बहुत से क्लासिक ग्रैंड मास्टर्स के गेम्स को देख सकते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि अच्छा, मैं विश्वनाथ आनंद का जो ये गेम था जिससे वो ग्रैंड मास्टर बना, मैं उसको पूरा ऑनलाइन देख सकता हूँ, समझ सकता हूँ और फिर खेल सकता हूँ। सो वर्ड बिल्डिंग गेम्स हैं, बहुत से अच्छे ऑनलाइन पजल्स के वेबसाइट्स हैं जहां बच्चे पजल सॉल्व कर सकते हैं, चेस खेल सकते हैं ऑनलाइन। ये कुछ इंगेजिंग एक्टिविटीज हैं जो ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए भी बहुत अच्छी हैं और बच्चे को एक बहुत अच्छा सोशल एंगेजमेंट देती हैं, जहां पे ऑनलाइन, जैसे आई एम ऑल्सो अ मेंबर ऑफ दिस ऑनलाइन चेस कम्युनिटी, तो वहां आप डिफरेंट तरह के लोगों के साथ खेल सकते हैं, तो बच्चे को एक फ्रेंडशिप भी होती है। थर्ड, जो मैंने पहले भी कहा था मैम, आजकल बच्चे कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑनलाइन सीखने की कोशिश कर सकते हैं, या किसी क्विज क्लब के मेंबर बन सकते हैं, या आपका बच्चे अपने 5-6 फ्रेंड्स के साथ वो एक छोटा सा क्विज क्लब बना सकते हैं जिसमें बच्चे हर फ्राइडे को एक क्विज क्रिएट करें, उसमें टीचर्स भी उनकी हेल्प करेंगे। सो दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज, जिसको हम थोड़ा सा ई बडी कह रहे हैं, 5-6 बच्चे जिनका एक तरह के कुछ इंटरेस्ट है, दे कैन कम टुगेदर, तो उससे बच्चों का जो अकेलापन है, लोनलीनेस है, वो भी कम होता है। और कुछ जो मैंने आपको बताया, ये 1-to-1 एक्टिविटीज हैं जो बहुत ही कंस्ट्रक्टिव हैं ब्रेन डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट के लिए। तो आई होप यू कैन ट्राई सम ऑफ देम। थैंक यू मैम। वन थिंग मोर सर, जो योगा क्लासेस मॉर्निंग में होती है, तो नॉर्मली बच्चे मॉर्निंग में उठते नहीं है, तो उस टाइप की एक्टिविटीज कुछ अगर आप इवनिंग में भी शुरू करें तो हम बच्चों को ज्वाइन करा पाए। हाँ मैडम, ठीक है। दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है, ये हमारा इंटरेक्शन प्रिंसिपल के या टीचर के साथ हो सकता है, आप बात कर सकते हैं। अभी जो इश्यूज जो है उसको लेके हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, हम इसमें सीमित रहे तो टाइम का उपयोग सही तरीके से होगा, क्योंकि वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम एंड शी इज एन एक्सपर्ट। ये जो आप बोल रहे हैं, ये तो स्कूल का जो मामला है, स्कूल को करना है, वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो इसका उद्देश्य नहीं है। ये जो काउंसलिंग आई मीन सेशन का जो है, ये बेसिकली आपका जो इश्यूज आप फेस कर रहे हैं उसी को लेके हुआ था। बट खैर, जो भी है, आपका जो है इशू जो है, दैट हैज बीन नोटेड for action. There is absolutely no problem. So ladies and gentlemen, on behalf of all of us, behalf of the teachers, behalf of Birla Public School students and parents, I thank Mrs. Saloni Priya. It has indeed been very, I'm sure that have been very beneficial, and people have got a lot of answers, because there used to be a lot of questions in the mind of the हमारे सबके, द पेरेंट्स बोलिए और टीचर्स बोलिए, सबके मन में जो सारे शंकाएं हैं, एंजाइटी जो है, देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड ऑल दिस थिंग। आई एम श्योर दैट इसमें जो है काफी उत्तर मिल गया लोगों को, एंड इसको हम जो है वी विल बी इन ए बेटर मेंटल स्टेट। और ये जो एकेडमिक ईयर जो है, हमें पता नहीं किस हद तक ये चलेगा, ये ऑनलाइन क्लासेस। हम बोर्डिंग स्कूल है, वी आर अगेंस्ट ऑनलाइन क्लासेस, ऑनेस्टली स्पीकिंग, विद दिस नॉट आवर फिलोसफी, इट इज कॉन्ट्रारी टू अगेंस्ट आवर फिलोसफी ऑफ द बोर्डिंग स्कूल। सो हम चाहते हैं बच्चे जल्दी से जल्दी आ जाए, बट फिर भी ये कंट्रोल में नहीं है। जब तक बच्चे ना आए टू द स्कूल, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो सेशन के बाद इट विल बी बेटर देन बिफोर। जो हमारा जो हालात पहले था, इनको जो संभालने का जो
तरीका था, it will be much better. And so that if you are handling the children better on the other side, so we are also able to, the teaching learning also goes on and better. So thank you very much, and thank you, Mr. Saloni Priya. Thank you Thank for you your so much, Captain Sen, and thank you to all the Birla Public School teachers and parents. I am Thank you, ma'am. enjoying, and it was my right and privilege to be with Thank you, ma'am. Thank Okay, you, ma'am. namaskar. Thank you, Stay ma'am. safe, To all the take care of parents. Thank you, yourself, ma'am. Thank you, ma'am. stay Hello, healthy, Thank you, sir. and ma'am. get some email or some feedback. Hello. Hello. हेलो क्लासेस में रहनी चाहिए कुछ बच्चों के लिए हेलो